Hello. Yeah, can you hear me? Am I audible? Yes, yes. I've just made you co-host. Yeah. I can hear you. Hello. Hello. Viraj, I can't see Harsh. Can you please call him and check? I tried his number. नमस्ते क्रांति जी। नमस्ते धवल जी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। मेरा वॉइस क्लियर है ना? Yes, yes, it's very clear. थैंक यू। I think we have still 2 speakers. Pratik is also here. Mr. Harsh is coming. He'll be there in 5 minutes. Okay. Mohit ji is there. Dharmesh ji is there. Viraj is there. Vishal ji is there. Harish ji is there. Ravichandran ji is there. So I think we are just waiting for Harsh and Mr. Prakash ji. And Diven Doshi as well. Diven also. Can you just call Himali? Please? I'm actually calling. Okay. Hello everyone. Here, yes, I can see him. Yes, Diven is also here. So I think it's only Mr. Prakash Jain and Harsh Vora. Hi Kranti ji. Namaste Vishal ji. Namaste. Hello to everyone. Can you guys hear me? Yeah, am I audible? Yes, Vishal ji. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Yeah. Yes, bhai, मजेमा? Yes, Dhaval bhai, all right. Fine lago. तुम्हारा आवाज ब्रेक है क्या? आवाज क्लियर? हाँ, अब है। वॉइस क्लियर? फाइन लागो जो। Prakash ji is joining in a minute. We also have Mahavir ji with us. Mahavir bhai. Mahavir ji is a past president of the Mumbai Wholesale Association. Mahavir ji, would you like to say something? Yes.
हाँ, सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। और मैं मुंबई होलसेल एसोसिएशन 1990 में स्टार्ट किया मैंने और हमारे 4-5 मित्रों ने मिलके, और आज तक चल रहा है और पूरे बाजार में सब लोग जानते हैं। वैसे बहुत पुराना एसोसिएशन है, इब्जा के बाद हमारा एसोसिएशन है। बहुत सारी एक्टिविटी में हम लोग भाग लेते रहते हैं और बहुत सारे काम करते रहते हैं। अभी भी कोरोना में भी हमारे सब मेंबर्स काम कर रहे हैं और पूरा इनिशिएशन ले रखा है उन्होंने, महाप्रज्ञ स्कूल वगैरह सब में पूरा चल रहा है। और आगे भी आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। बिजनेस कैसे करना, क्या करना, इससे पूरा चेंज हो जाएगा। सिस्टम ही पूरा चेंज हो रहा है, पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। I think महावीर जी was one of the very important person. उन्होंने बोला था कि ये सेमिनार कीजिए करके। So thank you so much महावीर जी, आपने ये टॉपिक हमें लेने के लिए प्रोत्साहित किया। थैंक यू क्रांति जी, आपको भी, केएनसी को भी, कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। और आपको मैं बहुत बहुत सालों से जानता हूँ और चेन्नई से जानता हूँ। चेन्नई में जब आप यूवीएम का पूरा आप भी करते थे, जब आप गली में बॉम्बे में आते थे, धनजी स्ट्रीट या जोई बाजार में 3 माला 4 माला कैसे अप्रोच करना, कैसे मेहनत करना, वो चेन्नई 100 को लाने में आपका बहुत बड़ा योगदान था। नहीं, आपने भी बहुत हेल्प की थी लाए थे उस टाइम में, बहुत रिवोल्यूशन थी और बहुत अच्छा काम किया था। और आज भी आप कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना काम करते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू, आपका आशीर्वाद रहे। और इंडस्ट्री के लिए मैडम इतनी दौड़ भाग करती है, उसकी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं केवल इंडस्ट्री के लिए। थैंक यू महावीर जी। हमारे साथ नीरव जी भी है। नीरव जी, यू वांट टू से समथिंग टिल वी स्टार्ट? नीरज जी अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ, मैं कर दूँ। हाँ। Hi Nirav. Hello everybody. How are you, Kranti ma'am? Fantastic Good. things we're doing. Dhaval bhai, Majama. एकदम मजा, नीरव भाई। Calcutta, Chennai, Mumbai, all India on one panel of wholesales. क्या बात है? नीरव भाई, बहुत ही अच्छा panel and very very important topic also. Ravi sir, how are you? Nasi Jewelry. Wanna come every day na Nalariko? रवि Nirav ji, सर, we have 2 minutes if you want to talk about the good initiative what you have given the jewelry Sure, Corona definitely. fighters. If you can request people to donate to your good initiative. Yeah, definitely. That's a very good thing. I'm sure everybody knows about JFC. Yesterday, we had a very good Zaveri Bazaar meeting where all the jewelers of Zaveri Bazaar are getting together for the work to be done for the karigars, which is our first priority. And we are providing almost 12,000 meals every day to each karigar, whoever is needed. And we are going for rehabilitation of Zaveri Bazaar. That is like sanitization of every building, closing entry exit points, and then taking care of all the checking to be done, medical services to be provided in Zaveri Bazaar, securing all the cameras. So it's a fantastic job, and 85 people from the industry, Prithviraj Kotari, Chen and Chen, and Vasant Biravatji, and a lot of senior people are into it. Mahindra Bhai, Mukti Gold. So we are all doing a really great job together. I would request all the wholesalers that it's our responsibility towards the trade also. I know कि अपन सब अपने कारीगर और फैक्ट्री के लिए we are doing the needful, but also towards our trade and rehabilitation of Zaveri Bazaar, which is the heart of jewelry industry. I would request you all come forward अपने आप से के लिए towards the trade your duty. You have to pay 1 lakh rupee fees per company, out of which 30,000 goes to CM fund and 70,000 goes to our trade via IBJA. So I would just request, and a very good platform. Thank you, Kranti ji, for let me express the JFC platform. And I hope आप ये चीज consider कीजिए. And if you want, you can connect me for more further details. I would really like to help everybody, and let's all help the karigars who are with us. जिनकी वजह से अपन बने हैं. It's our duty that we take care of them now. Thank you, Kranti ji. Absolutely. बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप. बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. Thank you, Kranti ma'am. All the best for the webinar. Vishal bhai, how are you? All well? Hello Neerav bhai, I'm good. आप कैसे? Be safe, be great with family, enjoy the best time ever with the family. Thank you Dada, thank you. Also take care. You're doing amazing work. Thank you. सबके अंदर के जो टैलेंट से सब बाहर है, कोई शेफ बन रहा है, कोई साफ सफाई में लगा है. Thank you Neerav ji. Thank you so much.
Please go ahead. All the Yeah, best. we also have Prakash ji from the Mumbai Wholesale Association. He's the president. Prakash ji, would you like to say a few words about the association, the good Yeah. work what you're doing for the industry? Yeah, good evening, everyone. This Good is evening. Prakash Jain, President, Mumbai Wholesale Gold Jewelers Association. As Neeraj ji has pointed out, this association is always located in the heart of Zaveri Bazaar, working for the Zaveri Bazaar. And as we have set up a platform, JFC, so Mumbai Wholesale is a part of that group, and we are working for the betterment of Zaveri Bazaar. Zaveri Yes. Bazaar itself, as you know, it's it's the gold capital of India, you can say, because Agreed. अगर Zaveri Bazaar में कुछ हो रहा है तो उसकी हलचल पूरी हिंदुस्तान में सुनाई देगी. बिल्कुल 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 बिल्कुल. तो Also, we have started JFC Dubai, JFC Singapore, JFC Malaysia, JFC Chennai. So we're getting funds from all the places. Excellent, Because, you know, excellent. yes, Commendable, Neeraj bhai, commendable. we are getting fund, and we are really helping कि Zaveri Bazaar को हम लोग किस तरह से रोल मॉडल बना सके पूरे इंडिया के लिए, कि किस तरह से मार्केट को ऑपरेट करना चाहिए आफ्टर कोविड. तो लेट्स होप कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो और हर सिटीज के अंदर इस तरह का इनिशिएटिव शुरू हो. So JFC is Jewelers Fight Corona. Excellent, excellent. Exactly. And any people related to the jewelry industry can join this. It's not just wholesalers or retailers. Let it be sequel logistics ho, yeah, there'll be stone vendors ho, then Angadiya wale ho. So everybody is joining it. Excellent, excellent. We also have Vishal ji here with us from GM Jewelers, and he is also a key member of the Bada Bazaar Gold Association. So आप एसोसिएशन के बारे में 2 मिनट अगर बोल सके, और आपकी एसोसिएशन भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है, तो just 2 minutes विशाल जी, we are just Sure. 4:58, so 2 minutes होगा. Okay, yeah, thank you, Kranti ji. Hello to everyone who is here. We as Bada Bazaar Jewelers Association, we are involved in helping the कारीगर्स जो टेबल पे बैठ के काम कर रहे हैं, जो लोग hand to mouth है, जो लोग को daily needs है. So we started an initiative wherein people from all the fields of jewelry have already contributed. There are people who are also contributing even now. तो हम लोग क्या करें, एक certain amount of ration that we have decided, which we are giving to people who are stranded back in Calcutta. There are certain people who have gone home. जो लोग घर चले गए उनको हम लोग financial help कर रहे हैं via bank or Paytm, whichever is suitable. And जो लोग कैलकाटा में हैं अभी भी, उन लोगों के लिए हम लोग एक रेशन का पैकेट है, वो उनको हेल्प कर रहे हैं. That is what we've been doing right now. Once the market opens post-COVID, we also plan to take certain other steps for the karigars who are involved. Not just Bada Bazaar. This is for everyone who is part of the industry here in Calcutta. Okay, Thank great. you, Kranti. Great, Yeah. Vishal ji. Very nice work, Vishal bhai. Thank you. Thank you. I think Viraj, should we start with the meeting? Everyone is there, or we are missing? I think everybody is there except Harsh. Let me just check whether he's there. And meanwhile, I would also request panelists, if you all, one of you could also have the recording. You know, yesterday I had some issue with my connectivity. So because you all are co-hosts, you all can record this meeting. So request, 2-3 people if you could record the meeting. I think Harsh is not there except Harsh. Viraj, everybody is here. What should we do? I think the timing. Maybe you can just call him. I think we should start with the introduction at least. Okay. Please, but okay. Kranti ji, I think he's here. He's probably muted. He's from some other number that he's probably logged in. Okay, We don't see but- his name. F0E62F90. What? F0E. If okay. You see him? Okay. Yes. Okay. Harsh, please start your video. Let me just check whether you are the same Harsh I know. Harsh. F0E6, right? I have actually made him a... Harsh, can you hear me? Yes, I can. Oh, great. Welcome, Harsh bhai. Okay. So I think, Viraj, let me just start with the introduction and then I'll hand it over to you. No. Good evening, everybody. Thank you so much for being there in such a big number.
I think 200 people at a start is a good number after a series of seminars and webinars happening. Thank you so much, Mumbai Wholesale Associations and the Bara Bazaar Association. They have been telling us to do this special session on the future of wholesale. As you all are aware that with the current scenario और जो market की condition है, आगे क्या होगा? And especially when the online web is so much there in business. 80 crore Indians have gone online, last 40 days, which is a big number. So ऐसे situation में no business can be away from online. So in सब background में देखकर आज जो wholesale है, which is a very important and a नाजुक कड़ी होती है between a manufacturer and retailer, that what is the future of this wholesale? So this session is basically understanding what are they expecting from the retailers and manufacturers, and what interesting things, because this is, if you see, it's a panel of all young generation next, and they've got some very interesting ideas which I think everybody could take advantage. So before taking much time, I'm just introducing the team here, and then I'll hand it over to the dynamic moderator. We have got Viraj, he will take it over. So just to start with, we have got Mr. Dhaval Bindi from Bindi Jewellers, Mr. Ish Bora from Jai Gulab Dev Jewellers, Mr. Ravi Chandran from Rasi Jewellery, Coimbatore, Mr. Prakash Jain from Chains Corner Private Limited, and who is also the president of Mumbai Zaveri Bazaar Association, Mr. Divyan Joshi from Modern Impex Kolkata, Vishal Soni from GM Jewellers, and he's a very active member of the Bara Bazaar Association Kolkata, Mr. Pratik Soni from El Gopal Jewellers Guwahati, Mr. Dharmesh Parekh from Ramesh Chandra Parekh Kolkata, and Mr. Mohit Prasad from Prasad Jewellers. So we had a good discussion yesterday that we wanted every minute of your audience to be good, and one of the very important discussion came that we should also have something very interesting in logistics. So that's why we have our special invitee, Mr. Logistic, with us. We are all looking forward to hear some interesting thoughts from you. So before taking too much of time, just from KNC Services, your host for this evening, and over to you, Viraj. Thanks, Kranti, for the introduction. And hello, everyone, and all the panelists. Kranti, you are absolutely right. The world is moving towards online. And it's time for the wholesale B2B industry form where we can come together and find better ways and productive ways to move towards it. And as wholesalers, and as you said, it's a very important link. As we have Viraj, sorry to interrupt. Just introduce yourself. I'm sure there is no introduction needed, but Viraj Thadeshwar from Shringar House of Mangalsutra, Bombay, the moderator for today's discussion. And today's एक रिक्वेस्ट है कि हिंदी में ज़्यादा बात हो सके. काफी लोग बोल रहे हिंदी, प्लीज. So I think we should all even better. Yes. आज का discussion है wholesalers के related है. In the online times, and I feel it is very important step for us to take, and so we will be discussing today on the topic related to online and future of wholesale industry for jewelry. So, I think let's start with the first question for all our panelists. Is that fine? Yes, I think we can go ahead. Yeah. I think first question हम retailers से start करेंगे. Retailers के लिए, how do you as a retailer at purchasing online? What are your expectations from the wholesalers and manufacturers for the same? ऐसे अब तक तो retailers online कहीं ना कहीं B2B industry में online थोड़ा बहुत चलता रहता था through WhatsApp, through Skype, और पर वो खाली जो नेसेसिटी होती थी उसके रिलेटेड काम होता था ऑनलाइन. बट नाउ आई फील शिफ्टिंग जो हो रहा है, मेजॉरिटी काम ऑनलाइन होना चाहिए और होगा आगे भी. तो इसके रिलेटेड रिटेलर्स की क्या राय है, रिटेलर्स क्या सोचते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है होलसेलर्स से, ये मैं जानना चाहूंगा. और धर्मेश पारेख जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, आपकी क्या राय है? जरूर विराज जी, जैसे आपने कहा ना कि अभी तक थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम हो रहा था व्हाट्सएप या स्काइप से,
बट अब जो है हम लोग को आना पड़ेगा वर्चुअल रियलाइजेशन के ऊपर, राइट? मतलब कि आज जैसे मैं एक रिटेलर हूँ, तो मेरे को पर्टिकुलर कोई आइटम की जरूरत है, तो आई विल बी ऑलवेज कॉलिंग यू कि विराज भाई आई नीड दिस आइटम. तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, Acha, and one more thing. People don't have to spend a huge amount on developing any software or making any website for that. This can be done just through a normal email or WhatsApp or any other means. Or you will be sending me the itinerary of the things that you have, designs वगैरह जो मेरे को चाहिए. उसमें से मैं क्या करूँ, मैं डिजाइन सिलेक्ट करके आपको मैं वो मेल बैक कर दूंगा. अब सेकेंड पार्ट आएगा कॉन्फ्रेंसिंग का. जो डिजाइन्स मैंने आपको नंबर सिलेक्ट करके भेजा है, अब वही डिजाइन्स मेरे को वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिखाएंगे. वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, मैं मेरा जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसका, वो डिपार्टमेंट का स्टाफ को भी मैं इन्वॉल्व करूंगा. वो डिजाइन्स वो ऑनलाइन फिजिकल जैसे वीडियो में देख लेगा. और इनकेस यदि कोई डिजाइन में उसको किंतु परंतु लगता है, देन आई कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट द होलसेलर, कैन यू आस्क सम ऑफ योर फीमेल स्टाफ टू जस्ट पुट इट और शो इट हाउ इट लुक्स. इससे क्या होगा, ऑल द जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पीस, द एंटायर स्टॉक, वो भी आ जाएगा. एंड देन यू कैन शिप द कंसाइनमेंट टू अस. इसमें क्या होगा, दो चीज है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या होगा, जैसे हम लोग IIGS में एक दूसरे को सामने बैठ के बात करते हैं वगैरह होता है, वो भी हो गया. सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो गया, और अपना जो काम है वो भी हो गया. दूसरा है कि एज ए होलसेलर, जैसे आप होलसेलर के बंदे आते हैं शोरूम में या ट्रैवलिंग करते हैं, देन दे हैव टू वेट इंटायर, इतना सारा रिस्क लेके आते हैं, ये सब अवॉइड हो जाएगा. That is what I think. अनुज भाई, खाली एक और सवाल रहेगा इस बारे में कि जैसे अभी तक ऐसा था कि लुक एंड फील वाला मामला रहता था. हाँ. आपको भी एज अ रिटेलर ज्यादा अच्छा बेनिफिट होता है जब प्रोडक्ट आपके सामने हो, आप लाइव उसको फील कर सको. राइट. ऑनलाइन में आपको उतना आपके लिए एक चैलेंज रहेगा. डू यू थिंक ये चैलेंज बड़ा है, इसको ओवरकम इजीली कर सकते हैं? You can overcome that one also, because अपने इतने साल का जब एक्सपीरियंस आ गया है, तो you cannot go wrong. At least 95% you will be on the spot. 5% देखिए you cannot say. That's why I said ना, you can all to get that particular piece जिसमें आपको dispute लग रहा है या doubt लग रहा है, to get some of the female staff to wear it and show it. Exactly. Great, धर्मेश भाई, thank you for your inputs. सेम सवाल मैं प्रतीक सोनी जी से करना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है एज अ रिटेलर, और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है होलसेलर्स से इसमें? देखिए, जो भी धवल भाई ने कहा एकदम लाइक स्पॉट ऑन है उनका बात. एंड रहा बात, इसमें क्या होता है, काफी होलसेलर्स को ऐसा लगता है कि हम ई कैटलॉग भेजेंगे, हमारा डिजाइन कॉपी हो जाएगा. सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता है सारे होलसेलर्स का. अब एक बात समझिए, मोस्टली रिटेलर्स का क्या होता है, जो भी रेगुलर आइटम रहते हैं उसमें आपके पास विराज भाई फोन आता है कि इस टाइप का मंगलसूत्र चाहिए, 20 पीस डाल दो. अब वो 20 के 20 वो पर्टिकुलर वो एक एक करके सिलेक्ट नहीं करता, वो लॉट बाय लॉट सिलेक्ट करता है कि इस टाइप का चाहिए, आप 20 पीस डाल दो. के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के लिए जो ऑनलाइन करते थे, उससे अभी हम शिफ्ट होना चाहते हैं 100% ऑनलाइन शायद करना पड़े, क्योंकि शायद आगे चल के लॉकडाउन के बाद भी ट्रैवलिंग कितना कन्वीनियंट होगा, आना जाना कितना कन्वीनियंट होगा, वो किसी को पता नहीं है. और बिजनेस ऑनलाइन मोड पे जा रहा है, तो रिक्वायरमेंट तो शायद आगे चल के बढ़नी चाहिए. फिर भी हम लोग रेडी होने चाहिए एज होलसेलर्स कि आगे रिटेलर्स की नीड को कैटर कर सके. तो आपको भी एज 100% और मेजॉरिटी पोर्शन आपका ऑनलाइन परचेजेस पे कैसे आप विराज भाई आपका डिस्कनेक्ट हो गया शायद. एनी मोर इनपुट प्रतीक जी आपकी साइड से? आई थिंक ई कैटलॉग अपने रेगुलर डिजाइन के लिए ई कैटलॉग है हमारे पास. बाकी धवल भाई ने जैसे बोला एक्सपीरियंस से काम कर सकते हैं. एंड एक्सक्लूसिव डिजाइन के लिए वी कैन यूज स्नैपचैट लाइक सर्विसेज एंड वीडियो कॉल्स. अब बाकी उसके बाद रहा कॉपी करने का
क्वेश्चन तो वो तो कहीं ना कहीं से अगर करने वाले होंगे तो कोई ना कोई तरीके से कर ही लेंगे. तो यू कैन यूज दीज प्लेटफॉर्म्स अपने तरफ, यू कैन यूज इट पॉजिटिवली. अब बाकी तो कहीं ना कुछ कमी रहेगी. विल हैव टू फाइंड अ वे आउट. उसका काम करते करते ही पता चलेगा, एक दिन में तो कुछ होगा नहीं. यू हैव टू बी पॉजिटिव और धीरे धीरे काम करेंगे तो अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा. गुड थॉट प्रतीक जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. मोहित जी, आप भी मोहित प्रसाद जी फ्रॉम राउरकेला, आपके भी थोड़े थॉट्स रिगार्डिंग ऑनलाइन परचेजेस. Yeah, thank you, Viraj bhai. Good evening, everybody. I'm Mohit Prasad from Raurkela Prasad Jewellers. जैसे कि हमारा डिस्कशन हो रहा है रिगार्डिंग ऑनलाइन कैटलॉगिंग, सो आई कंप्लीटली अग्री विद धवल भाई एंड प्रतीक भाई कि ऑनलाइन कैटलॉग इज अ नेसेसिटी. अभी जरूरत है ऑनलाइन कैटलॉगिंग का. बट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द होलसेलर्स कि आप लोग अपना एक ऐप बनाएं. ऐप में एक काफी लाइट वेट ऐप बनाए. नाउ एज अ रिटेलर मैं बताता हूँ, ज़वेरी बाजार के कुछ ज्वेलर्स के साथ मैं काम करता हूँ और मैं उन्हें ऑर्डर देता हूँ थ्रू देयर ऐप. बट द प्रॉब्लम इज उनका ऐप काफी स्लो है, और अगर आप जब ऑर्डर प्लेसमेंट करने बैठते हैं तो काफी टाइम लगता है. वो लाइक 1-1.5-2 घंटा का प्रोसेस हो जाता है और वो काफी हेक्टिक भी हो जाता है और बहुत बोरिंग भी हो जाता है. तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी होलसेलर टू बेसिकली डेवलप लाइट वेट एप्स. उसमें फिल्टर्स हो. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई वांट रिंग, जेंट्स रिंग चाहिए, अगर राजकोट का चाहिए या कास्टिंग चाहिए, तो इफ आई पुट फिल्टर्स कास्टिंग और राजकोट व्हाटएवर, देन वेट फिल्टर में डाल दूं तो वो सब डिजाइन्स आ जाए एंड देन आई डू ऐड टू कार्ट. तो इस तरीके का अगर इजी टू यूज ऐप हो तो वो हमारे जैसे रिटेलर्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा. जैसे कि कोरोना, अभी कोविड-19 चल रहा है, आई हाईली डाउट कि लोग अभी ट्रैवल करेंगे फॉर द नेक्स्ट 6 months एटलीस्ट. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि सब कोई इसमें काफी ज्यादा मेहनत करे. उसके साथ मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ. मैं सब होलसेलर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब कास्टिंग ज्वेलरी में थोड़ा ज्यादा फोकस करें. कास्टिंग ज्वेलरी में इसलिए बोल रहा हूँ, एंड यू ऑल्सो हेल्प द रिटेलर्स टू बेसिकली यू शेयर योर डिजाइन्स विद द रिटेलर्स. बिकॉज अभी क्या होगा, काफी सारे रिटेलर्स आर गोइंग टू हॉप इनटू बेसिकली ऑनलाइन सेलिंग. ऑनलाइन सेलिंग में procuring diamond jewelry designs, it's very easy. Hello, am I audible? Yes, of course, we can hear you. जी जी, yeah. तो लाइक अभी जो ऑनलाइन का ई कॉमर्स है हमारे ज्वेलरी बिजनेस, मोहित जी थोड़ा सा सॉरी लाउड कीजिए क्योंकि कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि दे कांट हियर यू. तो मे बी इफ यू कुड जस्ट कम लिटिल क्लोजर टू द स्पीकर. ओके. सो मैं जैसे कि बोल रहा था अभी कि अभी ऑनलाइन सेलिंग में जो भी रिटेलर्स है या कोई भी बड़े ब्रांड्स है, दे आर मोर इनटू सेलिंग ऑफ डायमंड ज्वेलरी rather than gold jewelry. So I would request all the wholesalers कि वो एक कलेक्शन अभी थोड़ा कास्टिंग ज्वेलरी पे भी ज्यादा फोकस करें एंड कास्टिंग ज्वेलरी का एक नया रेंज निकाले. वो डिजाइन्स हम लोग ऑनलाइन हर रिटेलर्स अपने अपने जो भी डेवलप कर रहे हैं वेबसाइट्स या एप्स, उस पे वो पुट ऑन कर पाए. बिकॉज द थिंग इज, जब लोग हमें ऑर्डर दे, वी ऑर्डर इट टू द होलसेलर्स और वो जल्दी से जल्दी मैन्युफैक्चर होके हमारे पास आ जाए. एंड वो पॉसिबल है ओनली कास्टिंग ज्वेलरी में, ना कि हैंडमेड ज्वेलरी में. आई एम पुटिंग मोर फोकस ऑन कास्टिंग ज्वेलरी बिकॉज उसमें वेरिएशन भी नहीं होता है वेट का. लाइक कैट कैम इमेजेस, इफ द होलसेलर्स कैन प्रोवाइड टू द रिटेलर्स, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू अस आल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज मैं और ऐड करूंगा, अगर ई कॉमर्स या ई ऑनलाइन बिजनेस को हम लोगों को कंप्लीट करना है तो वी वुड बी नीडिंग द लॉजिस्टिकल सपोर्ट आल्सो. आई एम फ्रॉम राउरकेला. It's a very small town. It doesn't have an airport. The nearest airport is Ranchi, which is 250 kilometers from here. तो लाइक हम लोग जो भी लॉजिस्टिक्स कंपनी से मंगाते हैं सामान, तो हमें काफी ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है टू प्रोक्योर दोज मटेरियल्स. तो लाइक मैं तो रिस्क नहीं लेता हूँ और मैं ये प्रोडक्ट्स मंगाता हूँ, लेकिन मेनी ज्वेलर्स फ्रॉम माय प्लेस दे डोंट यूज दिस लॉजिस्टिक सर्विसेज आल्सो. सो आई वुड होप द लॉजिस्टिक सर्विसेज आल्सो थिंक अबाउट दिस एंड मेक दिस होल ई-कॉमर्स थिंग सक्सेसफुल. Thank you. This is what I need to tell right now. मोहित जी, for logistics we have हर्ष भाई, बट उसके बारे में हम बाद में भी वापस डिस्कस करेंगे. मोहित जी, एक और सवाल है मेरा कि आपने ई कैटलॉग के बारे में तो बात की, वो हो गया इन्वेंट्री बेस्ड. अभी जो होलसेलर्स होते हैं उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री होती है. यस, इन्वेंट्री होती है. उसको हम एज अ रिटेलरों को इजीएस्ट वे में कैसे प्रोड्यूस कर सके ऑनलाइन, उस पर थोड़ा सजेशन आपका क्या राय है उसको? सर, मैं विराज भाई, मैं तो यही बोलूंगा, देखिए इजीली, जैसे कि B2B में
आई डोंट थिंक कि एक बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफी इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट एक बेसिक एक पिक्चर्स भी हमारे को एक ऐप के थ्रू मिल जाए तो बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे कि मैं बोला विद फिल्टर्स लगा के, मुझे कल किसी ने बोला था कि 360 डिग्री फोटोग्राफी करवानी होगी। आई डोंट थिंक दैट इज नेसेसरी एट प्रेजेंट, बिकॉज वो काफी टाइम टेकिंग चीज भी है। अगर आप लोग एप्स में एक एक रेंज का कुछ कुछ डिजाइन भी डाल दो तो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा उसको सिलेक्शन करना एंड देन उसे हमारे पास मंगाना वो प्रोडक्ट को। Viraj, just sorry to interrupt. I think on the same point, there is one question from Nakul Dantara. He's asking, sir, can you share details which company apps are using and how many apps can we download? So that's a different topic, I understand, but I think a good app with a good speed is, I think, a very important tool here. So any apps, sir? May I come in for here? Yeah. Hello. Yeah, Krantiji, can I come in for this question that that they have posted Yes, from Dantara Jewelers? yes. Yes, Viraj, I mean, you're okay, right? Yeah, of course. Vishalji, please. Yeah, so I spoke to a few people here after the initial discussion that we have had yesterday around, how do we at cost effective levels use online or methods which are internet based to provide our jewelry to retail store owners. Okay, so the cheapest which is available today is Quicksell. They allow 10,000 rupees a year and you can use up to 5,000 images at one point in time. I think which is a very effective way, and this 10,000 rupees is for a whole year's package. That was the cheapest and one of the very useful app that we have found. And if you go on to increasing your budget, there are many of them. The highest being running in somewhere around 5.5 CR. So that is the kind of range that we have. Every wholesaler, depending on the kind of comfort that they have, they can use these apps. Okay. And I guess it is connected to WhatsApp. The main digital medium should be WhatsApp, correct? No, so you have an option to upload your designs, okay, and then also share the link through WhatsApp. Yeah, there are questions. I think all the co-hosts are requested to just have a look at the chat also, so you know what are the questions. So they're asking name of the company and other stuff. So we will share the name of the company and since like we discussed a small thing yesterday, Krantiji, that we could probably put in 5-6 different people who are providing these app services. I think yes, a lot of people have asked we could do a separate session on that. Seminar Correct. for them, and I'm sure people can use depending on their budget. Correct. It is the cheapest that is available is 10,000 rupees, which is very very easily doable for a year. I think 10,000 is less than 1,000 bucks a month. Very cheap. Absolutely. Yeah. Okay. Thank you so much. What do you, Viraj? Yeah. It was a very good suggestion, and I'm sure we'll can work something out from this online के लिए. I think प्रतीक जी को कुछ share करना है. प्रतीक जी. इसमें like the thing is people might think कि 10,000 भी किसी wholesaler के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. People who are really small, जो बहुत ही 1 किलो आधा किलो स्टॉक लेके बैठे हैं, we also have to think about them क्योंकि they cannot just go on and spend 10,000 and take a risk of that. तो वो क्या कर सकते हैं, अब जो 1 किलो आधा किलो 2 किलो स्टॉक लेके बैठा है, he is not producing anything and everything. He's just वो खाली 1-2 चीज में फोकस कर रहा है, let's say बाली या कोई टाइप का चेन या कुछ भी एक दो चीज के लिए. तो वो क्या कर सकते हैं, 2-3 होलसेलर्स एक साथ मिलके, छोटे 2-3 होलसेलर मिल लिए, वो एक साथ अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन अपलोड कर सकते. तो उससे क्या होगा, उनका कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा एंड दे कैन कम टुगेदर एंड सेल मोर. तो उससे एक का कस्टमर दूसरा को मिलेगा, दूसरा का कस्टमर एक को मिलेगा. दिस वे दे आर हेल्पिंग ईच अदर, अपना कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं एट द सेम टाइम. Excellent. Amazing. प्रतीक जी, थोड़ा सा होलसेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहेंगे इसके ऊपर, या जैसे उनके होलसेलर्स की क्या राय है ऑनलाइन के ऊपर, और ऑनलाइन बिजनेस अभी तक का वे ऑफ वर्किंग जो हमारा था उससे किस तरीके से हम बेटर गिन सकते हैं इन पॉजिटिव वे. तो होलसेलर्स की राय जानना चाहेंगे. प्रकाश जी ऑनर से पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है इसके ऊपर. प्रकाश जी, can you hear me? हेलो.
Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. This is Prakash Jain from Chains Corner Jewelry India Private Limited, जवेरी बाजार, मुंबई। देखिए, जैसे कि समय के साथ इस समय पूरा चेंज हो रहा है, तो हमें भी अपने चेंजेस लाना पड़ेगा। और प्रकाश जी, सॉरी टू इंटरप्ट, आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है। If you could just be a little closer, yeah. Okay. Now am I audible? I'm audible? Better, but Yes, not very better. good. Okay. जैसे कि मैं कह रहा हूं कि समय के साथ अपने को भी चेंज होना पड़ेगा, और ये एक बदलाव का दौर है, बिकॉज द वर्ड इज कॉन्स्टेंट चेंज इज इनविटेबल। तो हमें ये करना पड़ेगा कि होलसेल ने अब तक ये चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया था कि हम ऑनलाइन किस तरह से जाएंगे और किस तरह B2B में, दरअसल ऑनलाइन का इतना बड़ा शेयर नहीं था, बट अब हम देख रहे हैं कि समय चेंज हो रहा है, तो हमें ऑनलाइन के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड देयर हैज टू बी सर्टेन पार्ट, हमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा करना पड़ेगा, चाहे वो होलसेलर्स के लिए, जो बिग सेल्स होलसेलर्स है, उनको ज्यादा इस पे ध्यान देकर इस पर फोकस करना होगा कि हमें ऑनलाइन किस तरह से, हमें बेटर एक तरह से अपने प्रोग्रामिंग लेने पड़ेंगे और नए सॉफ्टवेयर उसको इन्वॉल्व करके हमें अपने होलसेल को किस तरह मेजोरिटी के पास पहुंच सकते हैं। जैसे कि भाई साहब ने एक वैसा पे कहा कि एप्स के थ्रू, राइट, एप्स अभी भी यूज हो रहे हैं, हमने हमारी तरफ से आईपैड्स बनाए हुए इस तरह से, वो आईपैड्स हमने अपने सारे डीलर्स को, जो बिग डीलर्स है हमारे, उनको दे रखे हैं, उसके अंदर वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, उसके अंदर हम वेरीफाई न्यू डिजाइन डालते रहते हैं ताकि वो डिजाइन को देखकर उसको फिल्टरेशन कर सकते हैं। और वो फिल्टरेशन पॉइंट भी हमने डाला है कंप्लीटली, जहां हमारे वेट के हिसाब से है, आइटम के हिसाब से है, और जो हमने नाम दे रखे हैं आइटम्स के, जैसे कि हमारा यूनिक कलेक्शन है, या हमारा जो मेंस कलेक्शन है, या हम लोग जो ब्राइडल कलेक्शन के लिए काम करते हैं, या हमारा जो नवरत्न कलेक्शन है, उसको हमने अलग अलग उसको सेग्रीगेशन कर रखा है। वो हिसाब से भी वो ऐप के अंदर वो सारे कर सकते हैं काम। बट अभी जो कोविड के बाद का जो समय आ रहा है, वो सोचते हुए हमें और इसके ऊपर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐप्स के ऊपर ज्यादा अपने को देखना पड़ेगा, और हम उसके ऊपर और ज्यादा किस तरह काम कर सकते हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यस विराज जी। थैंक यू प्रकाश जी। और सर प्रकाश जी, आपको नहीं लगता है कि ऑनलाइन होने से कहीं ना कहीं अपना ज्यादा हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कहीं ना कहीं कुछ लॉजिस्टिक वे में, या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है, क्योंकि ये एक्चुअली जैसे कि हम अपने जो बाहर भेजते हैं, वो एक बहुत रिस्क फैक्टर था इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक, और दूसरी जो उसके साथ एक कॉस्ट इफेक्टिव। सबसे बड़ी बात है कि जो चीज हो रही है वो है कि अगर हम एक स्टाफ को एक बाहर भेज रहे हैं, तो उसका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो जो आ रहा है वो बहुत बड़ा कॉस्ट है, और अगर वो कॉस्ट को हम डिवाइड कर अगर आज टेक्नोलॉजी के साथ उसको जोड़ दे, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है हमारे लिए। और इस तरफ B2B को बिल्कुल सोचना चाहिए, और मैं तो कहूंगा कि बहुत ज्यादा लोगों को इस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। थैंक यू प्रकाश भाई। फ्रॉम मॉडर्न इम्पैक्ट्स, आपका, यस सर, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है आपको? आई कैन हियर यू। सर आपका क्या राय है फॉर ऑनलाइन? कैन यू हियर मी? सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और सर सेम आपके लिए एक एडिशनल सवाल रहेगा कि जैसे फॉर एज सेम चीज हमको एक्सपोर्ट में भी कैसे काम आ सकती है, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बायर्स को भी अगर हमें ट्रैक करना हो, उन तक भी करना हो। Right. Firstly, thank you everyone and all attendees for being here. I think talking about e-catalogs, one thing that as an additional benefit that it allows us right now is that it forces us to be more data centric. We are collecting more information about our customers, understanding their purchase patterns better, and it will also reveal trends to us in the longer term. तो वो हमारे लिए एक बड़ी बेनिफिट की बात रहेगी, और इस वजह से एक्चुअली हमें इसको ट्रांजिशन में लाना ही चाहिए। हमारे इट इज मतलब इनिशियल हमारे लिए कुछ मेहनत है कि इतने हम लोग स्पेशली फॉर होलसेलर्स कि हमें इतने फोटोग्राफ लेके अपलोड करने हैं, बट इन द लॉन्ग रन ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट प्रूव होगा, बिकॉज इट विल फोर्स अस टू बी मोर डेटा सेंट्रिक. So that is an important part of this, and we can understand trends better, cross selling better कर सकते हैं, और design अपने और seasonality समझ सकते हैं because of that. And also talking about video conference selling,
so creating something like a virtual storefront on using Zoom or maybe even a customized solution, but for now something like a Zoom or a Skype, but just creating a virtual storefront using Zoom Even can be very beneficial for export. Even as Dharmesh ji had mentioned previously, that you can, if your customer can't travel to you in Hindi. Hello. हिंदी में अब जी श्योर तो इस पोस्ट कोविड इस कोविड टाइम में हमें, जहां हमारे कस्टमर्स हमारे पास ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, जहां एक्सपोर्ट कस्टमर्स ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं फॉर प्रोक्योरमेंट एंड परचेजिंग, ये वर्चुअल स्टोर फ्रंट जैसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे वो आपके पास आके डील करते हैं आपके साथ, आप सिमिलर एक चीज जूम कॉन्फ्रेंस में भी कर सकते हैं टू हेल्प योर प्रोक्योरमेंट। एंड इन द फ्यूचर, मतलब ये आज की बात नहीं है, सपोज 2 years डाउन द लाइन, 3 years डाउन द लाइन, मेरे हिसाब से ये ट्रेंड ही हो जाएगा, बिकॉज इट इज आल्सो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर अ लॉट ऑफ बिजनेसेस बेस्ड अब्रॉड हु आर प्रोक्योरिंग फ्रॉम इंडिया एंड 3 or 4 other प्लेसेस। तो ये मेरे हिसाब से कोविड हमें फोर्स कर रहा है टू अडॉप्ट दिस एज अ ट्रेंड, बट हमें इसको एज अ बून मानना चाहिए एंड अडॉप्शन करना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर ट्रेंड ही हो जाएगा। आई फील इंडस्ट्री नॉर्म हो जाएगा ये एज एन ऑपरेशनल बेसिस। तो कोविड इज अ बेनिफिट कि हमें ये अडॉप्ट करवा रहा है। जी, आई एग्री विद यू, और आगे चल के ये चीज हमको इंस्पायर करेगी इससे काफी एक्सपांड करने के लिए। थैंक यू देवेन जी। धवल जी। जी सर आपके लिए भी एक सवाल है सर। जैसे अभी तक आई एम श्योर सब कहीं ना कहीं B2B में ऑनलाइन काम कर रहे थे। हाँ। कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, जैसे हम पर्टिकुलरली हम जैसे स्काइप पे करते हैं, वर्चुअल स्टोर चलाते हैं, स्काइप पे करते हैं। जैसे अभी तक आप किसके ऊपर अभी तक आपने यूज किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, और आगे आपको एक्सपैंड करने में आपके आइडियाज क्या क्या रहेंगे इसके ऊपर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच क्रांति जी एंड टीम KNC, मुझे इधर ये प्लेटफॉर्म के ऊपर बोलने का मौका दिया। मैं मेरी कंपनी के बारे में और थोड़ी मैं बात करूं तो हमने 2010 से हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर हमने हमारा जो पूरा मार्केटिंग स्टाइल था वो एग्जीबिशन बेस्ड ही हमने किया था। मतलब आज दिन तक हम हर एक सेक्टर में अलग अलग, जैसे कोई भी अच्छा शो हम छोड़ते नहीं थे, चाहे वो कलकत्ता में हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो बॉम्बे हो, तो हम हर शोज हम करते थे। तो हमारा आज दिन तक का जो क्लाइंट बेस है और हमारा जो मार्केटिंग स्टाइल है वो पूरा मार्केट एग्जीबिशन बेस्ड था आज दिन तक पूरा। उसमें भी हमने आज से 5 साल पहले हमारी खुद की वेबसाइट बना के रखी है, उसको भी हम काफी प्रमोट कर रहे थे। मैं और एक छोटी मेरे बारे में बात करूं तो मैं एक छोटे से कस्बे में बैठा हूँ, मैं जूनागढ़ में बैठा हूँ, गुजरात के जूनागढ़ में। तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग पूरा सेटअप इधर है, मेरा मार्केटिंग भी मैं पूरा इधर से ही करता हूँ। होता क्या है, मेरे जो भी क्लाइंट्स है ना, उनके लिए मैं एग्जीबिशन में जाता हूँ, या तो वहां पे कोई मेरी ट्रिप या कुछ भी लगता है तब उनके पास पहुंचता है माल। तो लोग इधर तक मेरे लिए खास आना है उनको, तो जूनागढ़ तक मेरे अकेले के लिए आना है उनको। अगर मैं बुला सकता हूँ उनको इधर, मैं काफी सारी फैसिलिटीज भी दे सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, लेकिन वो समझो साल में उसकी जरूरत तो 12 महीना रहेगी। वो 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, लेकिन हर महीने तो आ नहीं पाएगा। तो वी आर रेडी फॉर दैट, and I think we should be ready, we all should be ready, and we should be easily available on any of the e-platform. मुझे लगता है कि एग्जैक्टली धवल जी आपका पॉइंट वैलिड पॉइंट है। और तो मैं सॉरी विराज जी, मैं मेरी बात करूं ना तो मैं ऑलरेडी वेबसाइट भी मैं प्रमोट कर रहा हूं, और इससे भी आगे चल के मैंने अभी 4 दिन पहला मेरा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मेरा एक वेबिनार हो रहा था, तो उसमें से मुझे एक बहुत बड़ा इनपुट मिला, और अभी मेरी पूरी टीम इस पे लगी है। मैं मेरा पूरा जो भी डिजाइन है ना, वो मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ में क्लब कर रहा हूँ। उसमें मैं काफी सारे मैं उसमें फिल्ट्रेशंस कर सकता हूँ, जैसे वेट रेंज है, जैसे स्टाइल, शेप,
and category, everything, whatever as per the requirement of the retailer. I can share the images. I can make a e-catalog by using my accounting software itself. वेरी गुड थॉट राहुल जी से बहुत ही आगे का विचार किया है। और सर इससे आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि जैसे रिटेलर्स जो भी थे, जो अभी खुद पर्सनली आके ट्रैवल करके जो परचेजेस कर रहे थे, सिलेक्शन कर रहे थे ऑनलाइन के मीडियम से, उनका भी जो उनकी जो ऑफिस की टीम होगी, जो सेल्स टीम होगी, वो भी अभी उनको पर्सनली असिस्ट कर पाएंगी इसके ऊपर। जाके अभी तक कि वो पर्सनली तो आके कभी बहुत जगह पे सिलेक्शन नहीं करते थे। इसमें ये पूरा ओपन सिनेरियो उनको भी मिल जाएगा, उनके भी वैलिड इनपुट्स मिलेंगे, तो एक रिटेल बेस पे भी एक अच्छा एडवांटेज हो जाएगा ये। डेफिनेटली मेरा पूरा मानना है कि ये जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा मैं बहुत अच्छे से बिलीव करता हूँ। थैंक यू सर। विराज, दो लोग हैं जो 2 मिनट के लिए बात करना चाहिए ऑन द सेम पॉइंट, इफ यू कुड गिव देम अ चांस। यस, ऑफ कोर्स। एक महावीर जी, यू वांट टू से समथिंग, 2 मिनट्स आपके पास है। आई थिंक यू वांटेड टू शेयर योर थॉट्स एंड देन नीरव वांट्स टू से समथिंग। यस महावीर जी, प्लीज अनम्यूट हिम। यस महावीर जी, वो अभी अनम्यूट है। ओके, तो ये जो चल रही है वर्चुअल ऑनलाइन सेलिंग के लिए, मैं एक एमए ज्वेलर्स से हूँ, मेरा नाम महावीर लोढ़ा है। सबसे पहले 3 कैटेगरीज में सिटीज को डिवाइड किया जाता है, जैसे ए और बी और सी। ए कैटेगरीज के सिटीज में बड़े बड़े होलसेलर, बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, बड़े बड़े चेन स्टोर्स हैं। बी कैटेगरी में मीडियम क्लास के ज्वेलर्स हैं और सी कैटेगरी में लोअर क्लास के हैं। सबसे पहले होलसेलर का ये ड्यूटी रहेगी कि हर ज्वेलर को उनको एजुकेट करना है, कैसे ऑनलाइन परचेजिंग करनी है, कैसे ऑनलाइन सिलेक्शन करना है और कैसे उसको भेजना है। तीसरी चीज उसकी, सपोज आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। जैसे कोई डिजाइन पसंद नहीं है, एक फोटो में दिखता है और एक सामने दिखता है, उसमें फर्क हो जाता है, बहुत कुछ फर्क हो जाता है, तो वो उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। क्योंकि सपोज 5 to 10% रिटर्न आएगा तो हम लोग लेंगे, ये होलसेलर का ड्यूटी होगा। चौथी चीज बोलो एक लॉजिस्टिक सर्विसेज की। लॉजिस्टिक सर्विसेज बहुत लिमिटेड है, जो बेस्ट जो मानी जाती है, जैसे बीबीसी है या सिक्वेल है, बहुत लिमिटेड शहर तक है। ये मोस्टली ए और बी के कुछ सिटीज को कवर की, सी कैटेगरी सिटीज को कवर नहीं किया, तो वो सर्विसेज भी बहुत जरूरी है कि वो वहां तक भी पहुंचे। तीसरी चीज लॉजिस्टिक के साथ ये आती है कि लॉजिस्टिक के साथ वो आता है कि वो कितने ग्राम तक उनको वो वजन लेते हैं, कितने ग्राम की वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं और क्या रेट में लेते हैं। रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी रिटेलर है जो परचेज करेगा, ऑनलाइन परचेज करेगा, ऑनलाइन सिलेक्शन करेगा, उसको कॉस्ट कितनी पड़ती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीज मिला के आपको अपना काम बढ़ाना पड़ेगा, होलसेल का बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा और उसको थोड़ा टाइम लगेगा। पहले जैसे कैसे क्या हुआ, जीएसटी को लोग एक तरह से वो टेंशन मान रहे थे कि जीएसटी कैसे होगा, क्या करेंगे, डिमोनेटाइजेशन बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर धीरे धीरे लोग रूटिंग में आ गए, सब आरटीजीएस पे आ गए, निफ्टी पे आ गए और सब करीब करीब बी सिटी में भी आ गए, सी सिटी में भी आ गए। सब लोग अच्छा लग रहा है, सब लोगों को लग, क्यों यूनिफॉर्म रेट हो गई ऑल ओवर इंडिया, कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं मिलता, बॉम्बे अच्छा रेट मिलता है, सब लोग बाई करने लगे। इसी तरह ये चीजें बहुत जरूरी है और इसको टाइम लगेगा पर करना जरूरी पड़ेगा, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमको एजुकेट करना, होलसेलर्स को एजुकेट करना, रिटेलर्स को, आप इस पे आइए, इस पे सिलेक्शन करिए, आप पसंद करिए। ये मेरा व्यू है। Okay, just 2 minutes to Nirav also. Nirav, yes? Thank you. Thank you, Mahavir ji. It is a fantastic topic. Now, seeing the current scenario, I believe in the industry there are over more than 5,000 wholesalers, and maybe more than that there'll be retailers. So I would suggest to everybody, okay, I will help you to make a single platform. I will not make a website or something. A single platform where every wholesaler का app रहेगा, ताकि एक रिटेलर को अगर उसको बाइंग करना है तो वो एक ही प्लेटफॉर्म पे जाएगा, उसको हर एक कंपनी वाइज उसका हर एक जन उसमें टाई अप रहेगा, which जिसका मार्केटिंग वी कैन डू थ्रू ऑल द एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर्स लाइक क्रांति मैम है वैसे। सो व्हेन अ रिटेलर वांट्स टू बाय ज्वेलरी तो एक ही ऐप में वो पोर्टल पे उसको लॉगिन करना है, ऐप नहीं है, पोर्टल है। पोर्टल पे लॉगिन करके जितने भी वेंडर्स रहेंगे कैटेगरी वाइज वो उस पे रजिस्टर रहेंगे, एंड देन द ऐप विल डू इट्स जॉब। दिस इज द वर्क व्हाट आइडिया आई हैव टू गेट द होल इंडस्ट्री टुगेदर। If you people, this is a very interesting topic and we will do a separate session. Okay. Especially on nice. So, by
Thank Yeah, you. Thank this you is so like a much. marketplace, Thank you. right? Correct. Yeah, it's Correct. like a marketplace because it's easier. Marketplace for B2B एक- marketplace. Yeah, Yes, just like so एक Alibaba and retailer Alibaba. Yeah, right. 50 और उसके 300 वेंडर्स रहेंगे, लेकिन वो 300 ऐप डाउनलोड नहीं कर सकता है. Exactly. नहीं, So नहीं, we have to right, make a right. portal. We have to make a portal Absolutely. where everybody is available. It's like an Absolutely. exhibition. Let's take up this topic separately, maybe next week, because this is again a wanted topic. Thank you so much, Definitely. Neeraj. I Over to can help Viraj. you with Yeah. all the feedbacks, no problem. Sure, sure, sure. Thank you, ma'am. Yeah. प्लीज अच्छे विचार सब शेयर हुए हैं नीरव जी से, महावीर जी से, और आई एम श्योर इट विल वर्क वेल फॉर द इंडस्ट्री. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. विशाल जी, आप कैन यू हियर मी? विशाल जी, Yeah, I can hear you, Viraj. Yeah. विशाल जी, थोड़ा आपकी भी राय जानना चाहेंगे और ऑनलाइन, जैसे आप कलकत्ता से हो और आई एम श्योर आपके प्रोडक्ट्स इंडिया में, एक्सपोर्ट में, हर जगह चलते होंगे. आपका क्या विचार है इसके ऊपर? Similar to what Dhawal bhai has said and Neerav bhai has said, I think we've had a very fruitful discussion so far around going online. So I have similar views. I deal in bangles. So for people who are dealing in bigger products, for that matter, उनके लिए तो बहुत easy है, you know, with zero investment you can even start with smaller things like WhatsApp. तो अगर आपका कोई client ऐसा है जिसको बहुत सारे ऐप के अंदर प्रॉब्लम है या जो ऑनलाइन से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है काम करने में, वो भी यूज कर सकते हैं. बट दिस इज अ थिंग ऑफ द पास्ट, जो अभी हम लोग कर रहे थे व्हाट्सएप या स्काइप. अभी हम लोगों को आगे जाके एक कैटलॉग बनाना पड़ेगा जिसमें हम अपने रेगुलर डिजाइन्स रख रहे हैं. एक हम लोगों को उनको सर्विस देनी पड़ेगी कि whenever they want, we will probably have to put one person on standby to provide online services. हमारे किसी क्लाइंट का फोन आएगा कि मेरे को ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखना है, तो instead of disturbing the whole team, we could just have one person who would entertain that client. I think that would be one. Two is going forward, I'm sure in the next few days we will come out with the best softwares or applications that are available easily, or portals like Neerav bhai said. I think that would be path breaking, you know. If things like that come, there would be a completely different change of game. Having said that, Viraj bhai, I would want to take 1 minute here of your time and also say that when we are entertaining people in our offices, we also need to be careful then. ऐसा नहीं है कि 100% सब कुछ ऑनलाइन ही चला जाएगा. We will also have clients coming down maybe 2 months later. But precautions should be there, and safety measures in all the markets, Zaveri Bazaar, Bada Bazaar, Kucha Mahajani, all these places, we should be very careful about handling this issue at hand. जैसे आपको नहीं लगता कि जैसे अभी तक जो हमारा वे ऑफ वर्किंग था, जो हमारा सिस्टम और सब सेल्स पे ज्यादा फोकस था, वो सब पूरा सिनेरियोस और पूरा चेंज हो गए. जो फिजिकल सेल काउंटर था वो शॉर्ट हो जाएगा और ऑनलाइन काउंटर बड़े हो जाएंगे. Initially yes, I think for the next 1 year ऐसा तो होना ही है कि हमारा जो फिजिकल विजिटिंग था that will go down, online sales will go up. And you know, if we look at one of the leading manufacturers in India, I think Emerald has done it very, very beautifully for the last so many number of years, that everything that they have is online except for the exhibitions that probably they are doing. So I think for the next 1 year things are going to change, and जो जितना improve कर लेगा उसको उतना physical space use करना पड़ेगा. And I think we will also save a lot on the real estate cost here, you know. When we are talking about increasing the cost, I think ये cost अपना कुछ कम हो जाएगा, and we will have better sales. The reach will increase. Say today, for example, Calcutta का major market is Odisha, Bihar, Bengal overnight journey. I'm sure we will be able to tap in people from across the country and remotest of locations. That is how I see Viraj bhai it from here. अच्छा जी, it's a good thought. Thank you sir. Thank you so much. Thank you so much for the time. Thank you Kranti ji. हरीश भाई, can you hear me? Yes sir, नमस्कार. Yes, हरीश भाई, आपसे भी एक सवाल है. जैसे अभी ऑनलाइन अगर ज्यादा आगे हम एक्सपांड करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम कॉस्ट भी सेव करते हैं, कहीं ना कहीं आपका क्या विचार है इसके ऊपर? कहीं कॉस्टिंग में हमको इसमें कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन या कुछ बेटरमेंट हो सकता है आगे? सबको नमस्कार. Marish from Jay Gulab De Jewelers, Chennai. I thank Kranti ji for this and Viraj ji also. आपका आवाज नहीं आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा है. हाँ, थोड़ा आवाज ज्यादा चाहिए. हाँ. Okay. अभी जैसे कि ई कॉमर्स आज के
जनरेशन के लिए बहुत बढ़िया चीज है, जैसी अपने डेवलपमेंट बहुत काफी आगे ले जा सकता है प्रोडक्ट्स को भी। और जैसे फॉर एन एग्जांपल आज आपके प्रोडक्ट्स को भी लाइक ज्वेलरी को भी रिस्क फ्री जोन में ला सकता है। और काफी के लिए बड़ी और जान भी प्यारी आज की जनरेशन के लिए। तो वैलिड पॉइंट है काफी। और जैसे आगे आप इस पे एक्सपांड करना चाहोगे, आपका क्या विचार है इसके ऊपर? 100% सर, हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं ई कॉमर्स का। अपना ऑलरेडी एक जय गुलाब देव का ऐप है, वी हैव स्टार्टेड लॉन्ग बैक फ्रॉम 1 ईयर पास्ट बैक। तो आज का रिस्पॉन्स के लिए तो हमारे साइड से बहुत अच्छा आ रहा है और आगे एंकरेज भी करना चाहिए सबको। रविचंद्रन जी from Coimbatore, can you hear me, sir? Yes, sir. I am Ravichandran from Coimbatore. We are Rasi Jewelry. We are actually manufacturing casting jewelry. For the past 10 years, we are doing it. Maybe 15 years. Okay, what I would like to say is, when you're doing online, you have a when you're going and selling directly, you'll be able to take only a part of your stock with you. Once when it's online and your e-catalog is ready, you'll be able to share your entire stock with them. Even if the stock is not readily available with you, what are the designs you had, everything you can show it to your customers. So with a limited stock also, you'll be able to trade in a much larger way. And regarding e-catalogs, I think even PowerPoint is also good. Actually, we are last week I was there in a conversation with one of my friends. He said even PowerPoint is good for making a e-catalog. It's not very costly also. Computers, that's all. They'll be able to make a PowerPoint presentation. That's also good. Okay. Do you want me to start from the beginning? No, sir. You can continue, sir. Okay. That's all. And moreover, like once the traveling is not there, a majority of the risk is not covered, and you will be able to reach out to a larger sector across India. Now, only a limited, you're able to cover only a limited area. Once you go online, you'll be able to cover the entire place, and in a single day you'll be able to cover a lot of people also, and it will be more cost effective. It reduces your cost for traveling and all these things. So that's it. Thank you for the views, sir. Thank you, sir. Thank you. So now one more important point which Mahavir ji also discussed, sir, that online business के साथ हमको लगेगा लॉजिस्टिक सपोर्ट भी। ऑनलाइन बिजनेस लॉजिस्टिक साथ में ही जाएंगे, एक के बिना एक इनकम्प्लीट है, पूरा कंप्लीट हमारा रोटेशन नहीं हो सकते। Can you repeat it in English? The point is, sir, online business and logistics they both go hand in hand. Yes. And without logistics, online business and the whole motto of social distancing will not be complete if we do not use both the factors. Yes. Sir, we have Harsh Arora from BVC Logistics. Hello, Harsh ji. Hi, Viraj bhai. Good evening. सर, हर्ष जी आपसे भी थोड़ा जानना है कि सर जैसे अभी पॉइंट आया, जैसे हमारे अलग अलग इंडिया के अलग अलग सेक्टर से रिटेलर्स यहाँ पे ऑन पैनल पे हैं, सबका एक व्यू था कि आगे चल के बिजनेस का ग्रोथ कैसा रहेगा। स्टार्टिंग में तो सबका ऐसा सोचना है कि बिजनेस शायद ज्यादा फ्लो में नहीं रहेगा, स्लो से स्टार्ट होगा, कुछ साल महीने कुछ हमको इसमें निकालना है। तो ऑनलाइन बिजनेस करना है तो जो 3 टायर सिटीज है, 2 टायर सिटीज है, वहां तक लॉजिस्टिक का यूज करके हम प्रोडक्ट कैसे पहुंचाया जाए। और दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव भी हमको सोचना है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव या एडिशनल कॉस्ट के हिसाब से हमको 3 टायर 2 टायर पे पहुंचेगा।
वो भी कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रेंट होगा सबके लिए। इस केस में आपका क्या इनपुट है फॉर द ज्वेलर्स रिटेलर्स स्पेशली? थैंक्स रज भाई, थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग मी हियर। सर एक बहुत छोटा सा फीडबैक है फॉर अस। हम लोग एक सर्विस इंडस्ट्री है और हमारे लिए जितना बिजनेस यू ऑल और आर ब्रेड विनर्स, हमारे लिए आप लोग सब जितना बिजनेस करेंगे इट्स गुड फॉर अस, इट्स गुड फॉर द इंडस्ट्री। मैं बहुत सिंपली एक पॉइंट रखना चाहूंगा सर कि एट द एंड ऑफ द डे आप लोग ये ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है इट्स अ प्लेटफॉर्म विच इज ग्रोइंग ईयर बाय ईयर। दी ओनली प्रॉब्लम इज सर जब ये होलसेल की बात आती है तो जैसे फॉर्चुनेटली मुझे बहुत सारे ज्वेलर्स से पैन इंडिया मिलने का मौका मिलता है और मैं सबसे बात करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडस्ट्री में अभी भी स्पेशली इन द होलसेल सेक्टर अभी भी ये है कि नहीं यार मैं अकेला फर्स्ट गोअर क्यों बनूं, 10 लोग और ज्वाइन करें। और जैसे एक या दो सर ने बहुत वैलिडली पॉइंट रखा कि सबको ये डर रहता है कि मेरी डिजाइन कॉपी हो जाएगी। बट आई थिंक इट्स समथिंग व्हिच आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज दैट वी आर प्राउडली, हम लोग फ्लिपकार्ट के लिए वी आर दी ऑनलाइन ऑफिशियल लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर फॉर देम। और आप लोग को जान के ये बहुत ताजुब होगा कि द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद स्पेशली विद फ्लिपकार्ट is growing almost, it's doubling almost year on year. आप सरप्राइज हो जाएंगे जब हम लोग उनका लॉजिस्टिक संभालते हैं तो जब मैं अपने आजू बाजू के दोस्तों से कल बात करता हूँ कि यार आप लोग ऑनलाइन क्यों नहीं करते हो, हम लोग इंटरनली एक सर्वे लेते रहते हैं कि आप लोग क्यों नहीं फ्लिपकार्ट से लेते हो, आप लोग ये क्यों नहीं करते हो। तो वो लोग बोलते हैं कि यार हम लोग को बहुत लिमिटेड डिजाइन अवेलेबल है ऑनलाइन। हम लोग देखते हैं तो मेजर लोग खाली कॉइन्स पुट अप करते हैं, they are not putting up too many designs, so what do we choose from? So eventually हमको जाके we have to go to the showrooms and we have to choose from there. We don't have too many options. When the youngsters चाहते हैं कि वो ऑनलाइन ये सब चीजें करें। और हम सर जब तक हम रीच की बात आती है सर, जो विराज भाई आपका एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीच की बात सर जहां तक आती है सर, फॉर अस इट्स गोइंग टू बी एट द एंड ऑफ द डे वॉल्यूम सर। जब तक सर आप लोग as an industry do not grow these volumes sir, it is very difficult for us cost wise to reach those sectors. So my point is sir, हर जन consciously sir ये एक विचार का, ये एक सोच का ये एक डिफरेंस होना चाहिए सर कि everybody has to start putting up some part of the designs consciously और बोलना चाहिए कि नहीं यार मैं 10% 15% of my best designs as a show की designs मैं ऊपर डालूंगा। Trust me, sir. I mean, today probably we must be carrying the largest database probably in the country for jewelry because fortunately in the logistics space, हमको बहुत सारे ज्वेलर्स से बात करने के बाद यही और बहुत सारे रिटेलर्स और एंड कंज्यूमर्स से बात, since we are dealing with all of them, सबका फीडबैक एक ही आता है कि आप सर, why don't you tell jewelers to put in more better online? Tell them to put some good pieces online so people are encouraged कि हाँ यार ये जो मैंने ये पीस यहाँ पे देखा, the same piece was even available at the showroom. So same way, the moment that increases, sir, the reach increases. For us, growing offices into the 2 3 tiers is difficult. And cost wise, जैसे जैसे volume एक sector में बढ़ता जाता है, cost I assure you जैसे जैसे अगर वो 1 का 5 shipment पे भी जाता है, आपका cost drastically will drop. So I mean, this is what as a personal opinion is, sir. Rajbhai, anything else if you need to put across? Sir, of course, जैसे आपका point भी valid है सर, volume के related. पर सर इसको ऐसे भी put up कर सकते हैं कि जैसे अगर आपके पास अगर 3 tier city में फिलहाल अगर आप 5 कस्टमर से काम कर रहे हो, करेक्ट सर, अगर ऑनलाइन बढ़ेगा तो ये 5 कस्टमर होकर 50 कस्टमर हो जाएंगे। जी सर। अगर इस केस में अगर कस्टमर बेस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ेगा। डेफिनेटली राजभाई फॉर दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर, दी जो आपके वहाँ की रिटेल एसोसिएशंस हैं, होलसेल एसोसिएशंस हैं, दे नीड टू कम टुगेदर एंड से कि ठीक है यार हमारा सेक्टर है दिस। सर प्रॉब्लम क्या हो जाता है सर, इट इज समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट एवरी रिटेलर हैज इंडिविजुअली। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि एज अ ज्वेलरी फ्रेटर्निटी इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर वी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ यूनिटी टुगेदर। एक अगर वो यूनिटी रहती है सर और सब अगर मिलके बोलते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया है कहाँ पे कुचा मांझनी है दिल्ली में, वो बोलते हैं ठीक है यार आप ऑनलाइन कीजिए, आप हमको हफ्ते में
3 दिन आप हमको प्रोवाइड कीजिए, but you get our cost down. So problem is there are 100 jewelers, there are 100 voices, there are 100 opinions. We want it to be if it can come down to a single platform, एक city में एक quorum बने, वो quorum का एक common कुछ view हो, and they say नहीं सर आप हमको हमारे सिटी में नो डाउट इट इज गोइंग टू बी टर्निंग आउट टू बी एक्सपेंसिव, आप हमको वीक में 3 बार दीजिए, 2 बार दीजिए, बट यू कंसोलिडेट वॉल्यूम्स. व्हाट हैपेंस इज सर, एंड दिस वॉइस नीड्स टू गो ऑल अक्रॉस टू एवरीबडी. इंडिया में सबको ये वॉइस जाएगी तो ऑटोमेटिकली कंसोलिडेशन बढ़ेगा. सो आई फील यूनिटी इज व्हाट वी नीड, यूनिटी इज व्हाट वी नीड इन एवरीवन्स वॉइस एंड नॉट इंडिविजुअली एज पर एवरीवन्स डिमांड कि नहीं यार मुझे तो आज ही चाहिए, मुझे तो कल ही चाहिए. तो वो वे थोड़ा सा सर डिफिकल्ट. And I think somebody has just raised a thing about COD. If it's a smaller payment, sir, 50,000 के नीचे का अगर कोई payment होता है, तो yes, COD can be accepted. Harsh, I think Prateek just explained something very nice that, you know, if people can't afford even 10,000 rupees software, wholesalers, they can come together and have one common platform. So I think this consolidation will play a very important role. I think Mohit ji also बोल रहे थे कि he is away from the airport. So I think there has to be unity. Absolutely, you are spot on. Correct. You are spot on, Kranti. In fact, Harsh, I think your connectivity is not fortunately very good. BVC is been in the. Can you hear me now? Yes. So I mean, fortunately, BVC has been in this industry from the last 60 years. And we are the market leaders for almost in all the sectors, including your e-commerce, in VAL, and domestic and international. I can tell you there are some of the sectors probably where we export also, which turn out to be even more cheaper than the domestic sector, which is a very funny thing, but that's true because of the consolidation part of it. Correct. So consolidation is a very important key point, sir. जो ये हम सबको एक साथ, it is not my problem or it is not a wholesaler's problem or it is not a retailer's problem, sir. जब तक हम ये सब problems को हमारा एकजुट problem नहीं समझेंगे और बोलेंगे कि no यार, I'm not supporting myself, I'm supporting my wholesaler, I'm supporting my retailer. This has to be the attitude. ये एक सोच की सर, मैंने वही इससे सबसे पहले बोला, एक सोच का difference आना चाहिए. अगर ये आ जाएगा सर, I'll tell you, this industry can work flawlessly and we can reach out to every corner in India, sir. Harsh, one point. When we're talking about unity and consolidation, just one point, just the thought which came to me, that there has to be a consolidation with the logistic operators also at times. Is there any possibility to work that way? At least in the remotest area where you can work, because you can see in airlines also sometimes they work as a team, you know, because if kuch flight full honge, so even it's a competitive flight, they arrange additional seats. तो मुझे लगता है जहाँ remotest location है वहाँ पर I think somewhere we have to work as a team so that everybody is saving the cost. Would you agree with me on this point? No, of course, Kranti, I agree. If that is the need of the hour of the future, probably we can look at it. Unfortunately, or fortunately, you say currently there are just 2 major players in this industry. There are not too many players, so there is not too much. And the problem is, Kranti, that's what I'm saying, that consolidation to that level, even if you are going to combine those two players currently, the consolidation levels are not, especially for the e-commerce sector I'm talking about right now, are not as much to reach out to that level. That's what I'm saying, sir. Kranti, that's what I made a point, that consciously at least make sure कि मैं 9 महीने की 5 design according come, the demand is going to. Absolutely. Kranti ji, since we have Harsh here, I would, if I could get 30 second, 1 minute kind of a time extra to speak here, that Harsh ji, it's a vicious cycle. You say that we do not have, sorry, parcels. maybe English में बोली, बहुत लोग बोल रहे हिंदी बोलिए, तो consolidation का हिंदी word भी मुझे मालूम नहीं है. बोलिए. हाँ, ठीक है. हर्ष जी, आप क्योंकि यहाँ पे हैं, मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ एक बात पुट अप करने के लिए कि ये ना एक बहुत ही विशियस साइकिल हो गया, मतलब ये नहीं खत्म होने वाली चीज हो गई है. आप कहते हैं हमें पार्सल्स ज्यादा, मोटेस्ट 3 सिटीज हैं, वहां के रिटेलर्स कहते हैं कि हमारे को कॉस्ट ज्यादा पड़ती है क्योंकि 3,000, 4,000, 6,000 एक्स्ट्रा रुपए लगते हैं. वो लोग एयरपोर्ट से एक जन को स्टार्ट करना चाहिए. आपके पास जगह है, आप एटलीस्ट हर स्टेट के अंदर
एक एक्स्ट्रा या 2 एक्स्ट्रा कोविड के बाद में स्टॉप स्टार्ट में विदाउट दिस एक्स्ट्रा चार्ज जो आप कर रहे हैं। मेरे को लगता है अगर आप ऐसा करेंगे आपका बिजनेस मल्टीफोल्ड बढ़ेगा। मैं आपको उड़ीसा, बिहार, बंगाल का अश्योर कर सकता हूँ, बहुत सारे जो सिर्फ ट्रैवल करके कलकत्ता माल पिक करने के लिए आते हैं, ताकि क्योंकि उनके पास वो सुविधा नहीं है। अगर आप लोगों में से एक भी आदमी बीबीसी या सीक्वल में से एक भी जना एक अपनी सिटी बढ़ाएंगे, लगता है सबका बहुत अच्छा होगा। और जो आपने बात कही है एट एन एसोसिएशन लेवल, आई एम श्योर इस डिस्कशन के बाद में मैं अपने एसोसिएशन में डिस्कस करूंगा, और जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको भी कहूंगा कि भाई आप भी अपने अपने एसोसिएशंस में डिस्कस कीजिए। आपका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि हफ्ते में चाहे 2 डिलीवरीज हो, बहुत अच्छी चीज है ये। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी एक कदम बढ़ाइए इसकी ओर, कम से कम हर स्टेट में। श्योर विशाल जी, श्योर, एब्सोल्युटली सर। सर एक कदम नहीं, I think Harsh, you are on the top floor. If I'm not wrong, BBC गुवाहाटी में अवेलेबल ही नहीं है। हर्ष भाई, I think डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ये डिस्कनेक्ट हो गए। I think he could hear the point that we are trying to discuss. I'm sure वो लोग Definitely. We will definitely come up with a good solution, sir. इसके लिए हम definitely एक अच्छा solution लाएंगे, sir. But आपने जो एक बहुत ही valid point बोला विशाल जी, just 2-3 things, sir. We need to just put that circle together और कुछ नहीं है, sir. Once we have these 2-3 things in place, I think we can work this out, विशाल जी. कोई problem नहीं है, sir. We are always there. Thank you so much. Thank you, Harsh bhai. Thank you, Kranti. Thank you. Thanks, हर्ष भाई। काफी सर आपने लॉजिस्टिक का पॉइंट्स क्लियर किए हैं। आई थिंक एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी रेज हुआ था अपनी कल की मीटिंग में, जो मेनली रिटेलर साइड से हमको ज्यादा इसके इनपुट्स आए थे, जैसे जो बढ़ते रेट्स जो आ रहे हैं, जो रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो रैपिड राइज हुआ है, तो क्या हमें इसका 18 कैरेट डाइवर्ट होना चाहिए? ये धर्मेश जी से। डेफिनेटली अभी जो सोने के भाव जो हिसाब से बढ़ रहे हैं, और जनरल पब्लिक को गिफ्टिंग के लिए कुछ आइटम चाहिए इन द रेंज ऑफ 3,000 to 8,000 रुपीज, विच इज नाउ बिकम वेरी एक्सपेंसिव इन द केस ऑफ 22 कैरेट ज्वेलरी। अभी हम लोग यदि 18 कैरेट में स्विच कर जाते हैं तो आई एम क्वाइट श्योर दैट ये जो सेक्टर अभी गायब हो गया ज्वेलरी से गिफ्टिंग का, 3,000 to 8,000 वाला सेक्टर, वो अपना सेक्टर वापस हम लोग वो क्लाइंट्स को वापस ले सकते हैं। So 18 carat is definitely a good idea. Yeah. And do you think it will be acceptable? India के सारे अलग-अलग states, cities सब में accept हो जाएगा? Yes. I'll tell you. See, today in retail, many times we see previously, like when the gold price was not that high, we used to sell 20, 40, 80 chains to single clients. Tops also, like in the case of earrings. So we used to have single design earrings of 22 pairs. People used to buy for gifting, शादी में देने के लिए, बर्थडे में देने के लिए ले जाते थे। लेकिन जैसे जैसे भाव बढ़ने लगा, हमने देखा इसका डिमांड कम होने लगा। अब यदि ये चीज 18 कैरेट में आ जाती है तो पीपल 100% आई एम श्योर लोग एक्सेप्ट करेंगे ये। प्रतीक जी, मैं आपसे भी थोड़ी राय लेना चाहूंगा इस बारे में। What do you think? आपका क्या विचार है? इसमें क्या होगा? फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू एजुकेट, लाइक कस्टमर्स को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। पहले अपना 22-20 चलता था, उससे जब 22 में आए तो वो सब जगह एक बार में नहीं आया था, कहीं कहीं आया, कहीं कहीं नहीं आया, लोग को समझने में टाइम लगा। अभी आई वोंट से 100% 22-20 चल ये खत्म हो गया, कहीं ना कहीं अब भी चलता होगा 22-20। तो वैसे ही अपने अब बोले कि 18 पीपल वोंट एक्सेप्ट, तो वो कस्टमर्स को समझाना पड़ता है, इट टेक्स टाइम, बट वो समझते हैं क्योंकि 18 कैरेट में एक तो कम गोल्ड लगता है, उसका लॉन्गिटिविटी बढ़ता है, सस्ता आता है, लाइक प्राइस कम है उस 18 कैरेट गोल्ड का। तो इसमें बहुत सारे पॉजिटिव्स है, कॉन्स बहुत कम है। आपको हमें रिटेलर्स को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कस्टमर्स के ऊपर, कि कस्टमर्स को समझाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, बट एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करके सबका टर्नओवर धीरे धीरे एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आपने नहीं करेंगे तो धीरे धीरे भाव बढ़ेगा, एंड यू कैन नॉट मेक अ 22 कैरेट का
1 ग्राम का अंगूठी आधा ग्राम का अंगूठी नहीं बन सकता। आधा ग्राम का भी अंगूठी बने तो 5,000 के आसपास ABCD सब कुछ ले लो आगे 4,000 5,000 रुपए के आसपास पड़ जाता है। अगर वो ढंग का अंगूठी हो तो 4,000 रुपए तो कहीं नहीं है। तो 4,000 का अंगूठी आधा ग्राम में नहीं बैठेगा। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम 18 कैरेट में आएगा। 18 कैरेट में अगर नहीं आएंगे तो हम लोग है जो लोग कस्टमर्स को लूज करेंगे। इट विल बी आवर लॉस। कोशिश करना हमारा काम है। आप थोड़ा थोड़ा स्टॉक ले, सब रिटेलर्स थोड़ा थोड़ा स्टॉक लीजिए, धीरे धीरे ट्राई करिए, ये होगा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये अच्छे कस्टमर्स को आपको हल्का सा समझाना पड़ेगा और 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, 2 मिनट समझाती वो कन्वर्ट हो जाता है। पर सर जैसे काफी लोगों से सुनते हैं हम कि जैसे जैसे रेट्स बढ़ते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कस्टमर सेल और बढ़ता है, ऐसे शिफ्टिंग की यार आगे चल के 22 कैरेट में ही रेट बढ़ने से ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स आएगा। पॉइंट यहाँ पे 2 तरह के कस्टमर्स होते हैं। एक जिनको बजट से इश्यू नहीं होता, उनको माल अच्छा चाहिए, हैवी चाहिए, प्योरिटी ज्यादा चाहिए, ठीक है। और दूसरे होते हैं जो फिक्स बजट होते हैं, जो 80% होते हैं। जैसे हमने कल एक बार डिस्कस कर, किसी ने बोला था 80% कस्टमर्स ऐसे आते हैं जिनका फिक्स बजट होता है, मेरे को 1 लाख में सब कुछ चाहिए। उसको मतलब नहीं है कि कैसे चाहिए, कैसे आएगा 22 कैरेट में, उसको ये नहीं पता है, लेकिन उसका बजट फिक्स है, उसको 1 लाख में ही चाहिए। अब 1 लाख में उसको चूड़ी भी चाहिए, तो उसको गले का भी चाहिए, तो कान का भी चाहिए, तो एक अंगूठी भी चाहिए। अब ऑब्वियस ही बात है वो 18 कैरेट में ही आएगा, वो 22 कैरेट में नहीं आएगा। तो आप कस्टमर को हल्का सा समझाओ कि ये कैसे होगा, ये क्या है, 18 कैरेट क्या है। स्टार्ट हमें एट अ बेस लेवल स्टार्ट करना पड़ेगा, कस्टमर को एजुकेट करना। जब हम बेस पे स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे होलसेल, और होलसेलर के पास उसके लिए वैरायटी होनी पड़ेगी। अगर आपके पास होलसेल में वैरायटी नहीं है तो हम रिटेल में कुछ नहीं बेच पाएंगे। होलसेल में भी आपको हल्का फुल्का वैरायटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप होलसेल में वैरायटी बनाओगे तो हम पिक करेंगे तो हम पुश करेंगे। हर चीज एक चेन है, तो सबको को थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। थोड़ा सा रिस्क लेंगे, मार्केट अपने आप इवॉल्व हो जाएगा, और इवॉल्व होते सबका फायदा होगा। आप सजेस्ट करोगे सारे मैन्युफैक्चरर होलसेलर्स को कि इस पे डेवलपमेंट आगे करना चाहिए? ऑब्वियसली एकदम 100%। एंड मेरे ख्याल कास्टिंग वास्टिंग में 18 कैरेट में बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, बट ट्रेडिशनल कलकत्ती ज्वेलरी ये सब जो हुआ, इसमें अभी तक 18 कैरेट में मैंने पर्सनली रेयरली देखा है कि 18 कैरेट कलकत्ता ज्वेलरी किसी के पास मिला है। अनटिल अनलेस आप लॉट के वाइज ऑर्डर देने जाओ कि मेरे को आधा किलो बना के दो, किसी के पास रेडी स्टॉक नहीं रहता कलकत्ता ज्वेलरी का 18 कैरेट। इसमें क्या आपने थोड़ा सा लॉट चालू करेंगे ना, धीरे धीरे के अपने आप हो जाएगा सब कुछ। विशाल जी, आपसे इस बारे में थोड़ा पूछना चाहूंगा। जी विराज जी, देखिए या नॉट जस्ट कलकत्ता ज्वेलरी, आई थिंक पूरा जो अपना ज्वेलरी का सेटअप है ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये टॉप टू बॉटम चलता है। जो रिटेलर डिमांड करता है हम लोग धीरे धीरे वो बनाते हैं। ऑब्वियसली एट मैन्युफैक्चरर लेवल हम लोग बहुत सारा डिजाइनिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, बट समवेयर जो हमारा प्रोडक्शन है उसका फ्लो कम्स फ्रॉम दी एंड यूजर। तो एंड यूजर, जैसे प्रतीक जी ने बताया कि उनका जो एंड यूजर है उसको एक पर्टिकुलर रेट के अंदर एक आइटम चाहिए। सो आज से 1 साल पहले मैं बताऊं तो मेरे कुछ क्लाइंट्स से उन्होंने कहा मेरे को 1 लाख में 2 चूड़ी का डिजाइन चाहिए। तो हमने पूरे साल बहुत दबा के चूड़ियां बनाई, अ पेयर ऑफ बैंगल्स which could be sold at the counter for ₹1 lakh। तो अगर ऊपर से हम लोगों को लगेगा ना कि ऐसा डिमांड है, तो आई एम श्योर हम लोग अपने लेवल पे कलकत्ती ज्वेलरी में भी बनाएंगे। कुछ छोटे बहुत हमारे टेक्निकल इश्यूज आएंगे, बट आई एम श्योर वी विल ओवरकम दोस। दीज आर नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग्स टू ओवरकम। डिमांड सब जगह से आना चाहिए। एक पर्टिकुलर स्टोर से आएगा तो हो सकता है होलसेलर को रखने में असुविधा हो, लेकिन अगर ऐसे ही 10-12 लोगों से आने लगेगा तो आई एम श्योर ये दिस विल आल्सो पिक अप। 18 कैरेट अच्छा चलेगा। थैंक यू सर। मोहित जी, रिटेल सेक्टर से आपकी भी थोड़ी राय जाननी है। जी, मैं भी इस बात से काफी ज्यादा एग्री करता हूँ जो प्रतीक जी ने बोला एंड धवल जी ने बोला। लाइक मुझे याद है 4-5 साल पहले तक वेडिंग सीजन में हम काफी सारे लाइट वेट रिंग्स, इयररिंग्स सेल करते थे फॉर गिफ्टिंग पर्पस, बट धीरे धीरे वो सेगमेंट ही खत्म हो गया। अब कस्टमर्स आते भी हैं जिनका बजट है 5,000 और 10,000 को कुछ प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है, खासकर इयररिंग्स में।
रिंग्स में तो फिर भी अवेलेबल है, बट इयरिंग्स में बिल्कुल भी अवेलेबिलिटी नहीं है। एंड बीइंग अ रिटेलर इन ओडिशा, हमारे पास अगर 18 कैरेट के कुछ प्रोडक्ट्स है भी, वो सब कट की डिजाइन है, और लोग अब हमारे ओडिशा में वो कट की वही सेम रिंग्स और सेम टाइप ऑफ इयरिंग्स ले लेके बोर हो गए। अब वो इतना ज्यादा मार्केट में वो आ गया कि अब नाउ पीपल डोंट प्रेफर टू बाय दोस। तो मैं सारे होलसेलर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप लोग स्टॉक रखें हर तरह का रेंज में, लाइट वेट एटलीस्ट 3 to 5 ग्राम्स तक मैक्सिमम, जो भी प्रोडक्ट है 5 ग्राम के अंदर जो भी 18 कैरेट का प्रोडक्ट्स भी रेंज रखे। उसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा फेडरेशन को भी एंड बीआई फेडरेशन को, जीजेएफ एंड जीजेईपीसी, कि आप लोग भी प्रमोट करें 18 कैरेट ज्वेलरी को। बिकॉज अब क्या हो गया है, बीआईएस इतना रिगरस मार्केटिंग किया फॉर 22 कैरेट, अभी लोगों को ये लगने लगा है कि 18 कैरेट एक इंफीरियर प्रोडक्ट है, या उसमें मिलावट है, या एक नीचा ग्रेड का प्रोडक्ट है। लोगों को एक प्राइड फील नहीं होता, लोगों को लगता है एक मिलावट वाला प्रोडक्ट है। तो हमें उनके दिमाग से भी ये चीज निकालना है कि भाई 18 कैरेट हम अगर आपको दे भी रहे हैं तो दैट इज 75% गोल्ड, और ये जो बोल रहे हैं दे रहे हैं, दिस इज ऑल्सो हॉलमार्क। 90% कस्टमर्स के दिमाग में क्या हो गया है कि हॉलमार्क मीन्स 22 कैरेट, दैट्स इट, और बाकी अगर 22 कैरेट से कम है वो हॉलमार्क है ही नहीं। तो ये हमें हर रिटेलर को, हर होलसेलर को ये सब पुश करना होगा। मैं सजेस्ट करूंगा जीजेईपीसी या जीजेएफ जो भी है, लाइक फॉरएवर मार्क, ये अपना जैसे डायमंड का है, डायमंड इज फॉरएवर, इस तरह का कुछ कैंपेन 18 कैरेट को लेके भी अगर चला है कि 18 कैरेट ज्वेलरी विल स्टे विथ यू फॉरएवर, उसके कारण लोगों को काफी एक अच्छा एक फीलिंग आएगा 18 कैरेट गोल्ड के बारे में। एक उनका जो इंफीरियर थिंकिंग है वो भी खत्म होगा, और उन्हें लगेगा ये काफी ज्यादा लॉन्जिविटी होगा, ये प्रोडक्ट का काफी ड्यूरेबल होगा, तो वो परचेस भी करेंगे। उसके साथ साथ हमारे ज्वेलर्स का इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। आज अगर जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है कम से कम 20 से 25% हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि लेट्स, हमें वापस से 18 कैरेट में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मैं सब होलसेलर एंड फेडरेशन को रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू मोजी, वैल्यूएबल फीडबैक है। थोड़ा होलसेल सेक्टर से भी इस बारे में थोड़ा राय लेंगे। क्या प्रकाश बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही बात कहा आपने कि 18 कैरेट्स का जो है, 18 कैरेट को बिल्कुल प्रमोट करना पड़ेगा, और मैं मोहित जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक्चुअली ये ज्वेलरी पूरी फर्टिलिटी को एक बार तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक हमने क्या है, ज्वेलरी को पूरी तरह कैंपेनिंग ही नहीं किया है। ज्वेलरी को जेम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जीजेसी, लोकल लेवल एसोसिएशन और सारे एसोसिएशन को मिलकर एक बहुत बड़ा एड कैंपेनिंग चलाना चाहिए कि ज्वेलरी को हम किस तरह रखें। ओवरऑल एक देखिए ज्वेलरी क्या होता है, ज्वेलरी इज हैप्पीनेस। एक हम हैप्पीनेस बेच रहे, हमको ये एक बहुत बड़ा रिटेल में एक ये बनाना पड़ेगा कि हम हैप्पीनेस बेच रहे। एट द एंड ऑफ द डे ज्वेलरी हम जब भी बेचते हैं किसी को, तो उनके चेहरे पे एक हंसी होनी चाहिए, और हंसी होती है। तो वो ज्वेलरी की हंसी लाने के लिए हमें कैंपेनिंग, बहुत बड़ा कैंपेनिंग चलाना चाहिए, जहाँ हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट रख सकते हैं कि ज्वेलरी की इन्वेस्टमेंट पॉइंट है, और उसके साथ हम ये भी बता सकते हैं कि ये हैप्पीनेस है। आप भी देखिए, अगर ये 5-6 महीने के बाद जब ये 2 महीने का लॉकडाउन खत्म होता है और कुछ समय बाद वापस एक पूरी तरह का एक एटमॉस्फेयर सही चलता है, तो ज्वेलरी की दुकान में लोग वापस आएंगे, वापस उस तरह के, तो वो क्या खरीद रहे, वो एक हैप्पीनेस खरीद रहे। हमें उस तरह का एक पूरा मार्केटिंग चलाना चाहिए। जहां तक 18 कैरेट का होलसेलर के लिए बात आई है, होलसेलर हमेशा तैयार बैठे हैं कि हमें रिटेल से क्या सेगमेंट मिलता है, रिटेल से जो डिमांड हमारे पास पहुंच रही है वो डिमांड रखने में होलसेलर बिल्कुल तैयार है। मैन्युफैक्चरर्स को हमें पास आउट करना है, मैन्युफैक्चरर्स से हमें पूरी तरह वो आइटम मिलने के लिए तैयार है, मैन्युफैक्चरर्स बनाने के लिए तैयार है। आज हमारे पास इसी टेक्नोलॉजी हो गई है, एलॉयज इस तरह का है कि हम वही प्रोडक्ट 22, 18, 14 कैरेट तक हम बना सकते हैं आज। और दूसरा एक और जो चीज है, जो मोहित जी ने कहा कि 18 के अंदर इंफीरियर क्वालिटी का एक जो माहौल बन रहा है कि इंफीरियर क्वालिटी आ जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम सही तरह का एलॉय वापर रहे हैं, सही तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको सही तरह का कलरिंग दे रहे हैं, सही तरह का एटमॉस्फेयर चल रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 18 कैरेट प्रोडक्ट ज्यादा बनिस्बत 22 कैरेट के ज्यादा अच्छा चलेगा, और उसका ज्यादा ड्यूरेबिलिटी होगा, ज्यादा उसको चलन में भी ज्यादा चल सकता है। बट हमको उसको सही तरीके से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बहुत टाइम ये देखा है कि 18 कैरेट जब बन रहा है तो कुछ प्रोसेस इंफीरियर प्रोसेस से बनना, या किसी वो प्रोसेस से नहीं बन पा रहा है जो प्रोसेस से 22 कैरेट बन रहा है। तो उसको भी हमें होलसेलर पॉइंट पे व्यू, मैन्युफैक्चर पॉइंट पे व्यू, उसको देखकर वो 18 कैरेट को पूरी तरह व्यवस्थित प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तब जाकर हमको लगता है कि हम कस्टमर को भी ज्यादा अच्छी तरह समझा पाएंगे 18 कैरेट के लिए। करेक्ट प्रकाश जी। और जैसे मैंने एक सवाल पहले भी पूछा था
जैसे स्टेट वाइज, जैसे कुछ स्टेट जैसे महाराष्ट्र जैसे स्टेट है, इन स्टेट में 18 कैरेट ज्वेलरी आपको लगता है कि एक्सेप्ट लोग कर लेंगे? You have this question is specific to somebody, Viraj, or? प्रकाश जी आपसे ही पूछ रहा हूँ। प्रकाश जी। या देखिए, आप एक ट्रेडिशनल आइटम्स को आप छोड़ दीजिए, ट्रेडिशनल आइटम्स अपनी जगह रहेंगे। आप महाराष्ट्र का बात करेंगे तो ट्रेडिशनल आइटम जो है वो उनकी कैरेट में ही चले गए। आज भी महाराष्ट्र स्टेट ने फेडरेशन ने मांग की है कि 23 कैरेट को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए हॉलमार्किंग के अंदर। तो हर स्टेट का अपना एक रहेगा। आप मध्य प्रदेश और इस तरह के जो मिडिल एरिया में जाओगे तो वहां उन्होंने 20 कैरेट की मांग की है। बट अगर आप गवर्नमेंट स्पेसिफिकेशन चल रहे हो कि गवर्नमेंट ने हमें अगर 18 और 22, 14, तो मुझे लगता है कि हमें सब स्टेट्स को उसको छोड़कर 18 और 22 के अगर है हमारे पास, तो हमें 18 कैरेट और 22 कैरेट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू प्रकाश भाई। थैंक यू। धवल भाई, आपका क्या विचार है इसके ऊपर सर? सॉरी, मुझे पूछना है? हाँ जी धवल जी, आपसे। जैसे कल भी हमारी बात हुई थी, मैं भी आज मेरा रिटेल भी है इधर, तो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि इसमें हमको 18 कैरेट को प्रमोट करना ही चाहिए 110%। इसके 2 रीजन है। आप जैसे अभी विराज भाई आपने प्रकाश जी को पूछा कि क्या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, तो ऑलरेडी सब जगह पे 18 कैरेट एक्सेप्टेड ही है। क्योंकि अभी आप मानोगे तो इटालियन ज्वेलरी जो है, टर्किश ज्वेलरी है, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एट ऑल इन 22 कैरेट। वो लोग 18 कैरेट में ही बनाते हैं मेजरली देयर पार्ट। दूसरी चीज, हम रिटेल पार्ट पे देखे तो रिटेलर को उसमें ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आज ऐसी कट थ्रोट कंपटीशन है रेट्स के लिए। स्पेशली मैं गुजरात के स्पेसिफिक सिटीज की मैं बात करूं तो वो लोग 92 का रेट जो भी लेते हैं वो ऑलमोस्ट वो लोग आ गए हैं 89 पे, और 75 का जो रेट लेते हैं वो ऑलमोस्ट वो लोग लेते हैं 79 to 82। तो जो भी हमारा कॉस्टिंग है वो ऑलमोस्ट हम जो गोल्ड का रेट हम कोट करते हैं कस्टमर को उसमें से ही हम निकाल लेते हैं। तो उसके ऊपर जो भी हम लेबर वगैरह लेते हैं तो वो तो हमारा प्रॉफिट ही है। आज हम समझो आधा % 1% के लिए इधर उधर किसी के साथ समझो हमारा संबंध बिगड़ जाए, ऐसा हो जाता है काफी बार। तो इसमें तो और ज्यादा बेनिफिट है हमको, हम कस्टमर को और ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, हम कस्टमर को अच्छा इसमें डिस्काउंट दे सकते हैं और अपना प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि जैसे मोहित भाई ने कहा कि एसोसिएशन तो अपने आप जो करना है वो करेंगे। It's a perfect thought. Yeah. I'm sure इस पे आगे सोच के वंडर्स हो सकते हैं इसके ऊपर भी। I think सर अभी नेक्स्ट टॉपिक पे, लास्ट टॉपिक जो है अपना, उस पे जाना चाहिए। जैसे हमारा डिस्कस। हेलो। Yes, yes. Yes, so should we move to the next topic? Yes, please, please. Sure. अभी मैं होलसेल में से देवेंद्र जी से पूछना चाहूंगा, जैसे आगे चल के लॉकडाउन के बाद, जैसे वी आर नॉट श्योर, अनसर्टन है बिजनेस का क्या सिनेरियो रहेगा, कैसा ग्रोथ होगा, डी ग्रोथ होगा, नॉर्मल रहेगा, वी डोंट नो। सो इन दिस वाइल कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट सेविंग, एक्सपेंसेस पे कैसे कंट्रोल रखना चाहिए और कैसे सरवाइव करना चाहिए ये पूरा जो क्राइसिस वाला पीरियड होगा। So for wholesalers, what would be your suggestion? आपका क्या एडवाइस होगा? I think as we were saying that the next 2 or 4 months is going to be a very crucial period for all of us. Even Hindi please. और मार्केट स्लो डाउन और डिमांड स्लो डाउन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी।
तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमें एज होलसेलर्स हमें ज़्यादा प्रिसाइज होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ अपना ऑर्डरिंग और प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को लेके, कि ज़्यादा एक्सेस इन्वेंट्री हम ना कैरी करें और ना ही और वो आइटम्स पे ज़्यादा फोकस करें जहाँ करेक्ट वेट रेंज और करेक्ट डिजाइन के हिसाब से जा सके, जो रिटेलर्स को इजी पड़े सेल करने के लिए आगे कस्टमर्स को। और लेकिन इसका एट द सेम टाइम हमें इसको भी ध्यान रखना है कि हम अपना इनोवेशन, अपना R&D, अपना डिजाइन डेवलपमेंट ना खो दे इस कारण से। तो हमें ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा, ज्यादा वेल डिफाइंड करना पड़ेगा अपना प्रोक्योरमेंट और अपना मैन्युफैक्चरिंग को, कि हम बेटर केटर कर सके और ज्यादा एक्सेस इन्वेंट्री के साथ हम लोग रिमेन ना करें। तो दैट इज वन थिंग। मतलब when you are talking about less wastage, in short, it has to be exact requirement from the retailer to go to the manufacturer, so there is less wastage, if I put it in a very simple language, right? Yes. Also वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे सजेस्ट कर रहे थे इस पैनल में, अगर ट्रैवलिंग कम हो जा रही है और अगर ज्यादा प्रोक्योरमेंट ऑनलाइन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर हो जाता है, दैट इन इटसेल्फ इज कॉजिंग ग्रेट कॉस्ट सेविंग्स फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड. So that could also be in itself a viable solution or viable cost savings in this period. Thank you देवेंद्र जी. हरीश जी, सेम सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगा, आपका क्या थॉट है इसके ऊपर? हरीश भाई, he's there, he's not there. हरीश भाई, हरीश जी, हरीश जी, I think he got disconnected. No, Harish ji, can you hear us? Unmute yourself. Hello? Harish bhai? Yeah, stop the video. Ravi ji bhi. Harish, can you hear? Yes. Yes, Harish ji. Hello. अभी जैसे कि अभी 18 कैरेट डेवलपमेंट के लिए क्रांति जी. हरीश भाई, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपेंसेस के रिलेटेड है. ओके. क्राइसिस का जो समय है आगे, लॉकडाउन के बाद बिजनेस का शायद अनसर्टन है, कैसा क्या रहेगा, ग्रोथ रहेगा, कितना रहेगा, क्या रहेगा. ऐसे टाइम पे क्राइसिस में सरवाइव करने के लिए एक्सपेंसेस हमको कैसे कंट्रोल करने चाहिए, किन किन चीजों पे कॉस्ट सेविंग करनी चाहिए, और क्या आपका सजेशन है इसके ऊपर? अभी हरीश जी क्या हो रहा है, मतलब आप, हेलो कांति जी, कैन आई? Yes, of course, sir. Yes, of course, sir. Thank you. मेरे पास इसमें एक बहुत एक टेस्टेड एंड प्रूव्ड मेथड है इसके लिए, जो मैंने खुद ने अपनाई है और मुझे इसका बहुत अच्छा इंसाइट भी मिला है और अच्छा आउटपुट भी मिला है इसके लिए. जो एक्सपेंसेस हम ऑलरेडी करते थे एग्जीबिशंस में, इसमें उसमें सब में, उसको छोड़ के जो डेली हमारे जो एक्टिविटीज में जो भी हमारे एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, उसके लिए मेरे पास एक 4 क्वेश्चंस है, जो अगर हम हमारी टीम को ही पूछे तो दे आर द बेस्ट जज फॉर दैट. My first questions to our staff to be asked is how to reduce overall expenses of the firm, and related to that, how you will be helpful for that to reducing that expenses. पहली चीज तो हमको उसको ये पूछनी है कि हम हमारी कंपनी में अभी जो भी, क्योंकि काफी खर्चा कैसे होता है कि जो हमारे ध्यान में भी नहीं रहता, तो वो उनके ध्यान में रहता है. अगर उनका टीम मेंबर जो भी है वो, उसको मालूम होता है कि वो अलग से या झूठ में खर्चा कर रहा है, क्योंकि ये कंपनी का है, उसको तो कुछ लेना देना है नहीं, उसकी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा है. तो अपनी ही टीम के मेंबर का खर्चा वो कैसे कम कर सकता है, वो खुद आंसर दे सकता है. ये सबको हमको उसके पास से लिख के लेना है. और रिलेटेड टू दैट हमको वही क्वेश्चन उसको पूछना है कि हाउ यू विल कंट्रीब्यूट
to reduce the expenses from your side? ऐसा ही क्वेश्चन हम उसको सेल्स के रिलेटेड भी पूछ सकते हैं कि हाउ टू improve the total sales of the firm and how you personally will contribute to improve the sales of the firm. देखिए आज हम जो भी है, हम हमारी टीम के अलावा कुछ नहीं है. जो भी आज दिन तक हमने किया है वो सब हमारी टीम के आधार पे ही किया है. तो हमारे जो बेस्ट, हमारे जो एम्प्लॉइज है, जो हमारी टीम है, जो हमारी बैकबोन है, उससे ही हमको इसका रास्ता मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है. सही बात है धवल जी. फिर भी सर जैसे आप भी होलसेलर हो जी, ऐसा एक कोई भी एक एक्सपेंस जो आपके ध्यान में हो कि ये हमें हमेशा से कंट्रोल करना था पर हो नहीं रहा था हमसे, हाँ, इस क्राइसिस के टाइम पे अभी हम ये चीज करने का मौका मिलेगा, ऐसे कोई पॉइंट आपके ध्यान में ऐसा कोई हो? देखिए ऐसे तो काफी सारे एक्सपेंसेस है. जैसे हमने क्या किया, हमारा हर साल का हम एक्सपेंस एनालिसिस करते हैं. मतलब हमारे जब हमने फर्म स्टार्ट की, जब से प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तब से आज दिन तक का हमारा पूरा एक्सपेंस हमारे पास चार्ट है. हमारे 40-50 हेड्स है, वो 40-50 हेड्स के सामने एक एक के ऊपर हमने आज दिन तक कितना कितना खर्चा किया, ओवर एंड अबव उसमें चार्ट्स भी हम करते हैं कि इस साल में कौन सा खर्चा बढ़ा, कौन सा खर्चा कम हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब देख के. वो डिपेंड्स करता है कि हमारा वो जैसे मैं हूं तो मेरा जो एग्जीबिशन का या एक्सपेंसेस है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा था. तो अभी तो लॉकडाउन हुआ तो क्रांति जी की इनकम तो 0 हो गई. तो ऐसा हो सकता है. जैसे कोई भी एक्सपेंसेस आप नॉर्मल से नॉर्मल आप चाय पानी का खर्चा भी ले लो या एग्जीबिशन का बड़े से बड़ा खर्चा आप ले लो, हर चीज में आप अगर अपनी टीम का सपोर्ट लेके काम करोगे तो आप 110% आपको उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने सजेस्ट किया कि ये खर्चा फॉर्म को कम करना चाहिए, तो ही विल बी देयर फॉर यू. थैंक यू धवल भाई, वैलिड पॉइंट था ये भी. आई एग्री विथ यू इन दिस आल्सो. सर होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में से भी मैं चाहूंगा आपके साइड से ऐसा कोई पॉइंट आप बताना चाहो, शेयर करना चाहो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस. निवान या प्रकाश या हेलो. हाँ प्रकाश जी बोलिए. या देखिए होलसेलर्स में जो हमारे खर्चे हो रहे हैं उसको खर्चे के डाउन लाने के लिए अभी जो हमारा स्टाफ जो काम कर रहा था, जो परसेंटेज हमने स्टाफ के ऊपर काम कर रहा है, उसको स्टाफ को हमें मल्टीटास्किंग काम देना पड़ेगा. हमने पहले एक स्टाफ को बना रखा था कि सिर्फ वो स्टाफ एक अकाउंटिंग काम कर रहा है या कर रहा है, बट अब शायद होलसेल के अंदर हमें उसको एक मल्टीटास्क काम देना पड़ेगा, क्योंकि वो अकाउंटिंग के साथ अगर वो सॉफ्टवेयर के साथ बहुत बढ़िया है तो हमें उसको सॉफ्टवेयर और अकाउंटिंग दोनों को क्लब करके उसको काम देना पड़ेगा. इस तरह से हम एक बहुत बड़ा जो हमारी बड़ी टीम थी उस टीम को हम शायद शॉर्ट कर पाएंगे. और हमने जो अब तक जो हमारे जो बाहर जो सेल्स पर्सन जो घूम रहे थे उसका जो एक्सपर्टीज था वो तो वैसे ही समय के साथ इस चीज को हमें चेंज करते हुए उसको चेंज करना ही है. एग्जीबिशन जो हो रहे थे, नंबर ऑफ एग्जीबिशन काफी बढ़ गए, लेकिन शायद अब एग्जीबिशन के नंबर कम होकर हमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स को तलाश करने पड़ेंगे. दूसरे प्लेटफॉर्म से हम जब जाएंगे तो हमारे जो एक्सपेंसेस जो थे वो हमारे कम हो जाएंगे. एक पॉइंट और जो मैं कह रहा हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि इस वक्त होलसेलर को कोलैबोरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी. हमारे जो एक्सक्लूसिव कस्टमर्स है या जो सिटीज में हमें लग रहा है कि वो सिटी में ये एक बड़ा हमारा डीलर हो सकता है, उसके साथ हमें किस तरह से कोलैबोरेशन करना है, वो कोलैबोरेशन कर हम हमारे इन्वेंट्री को उसके यार पास आउट कर हम एक तरह का पूल बना सकते हैं. या किसी चेन को स्टोर के साथ जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा जो स्टॉक पड़ा है वो स्टॉक को किस तरह उनके साथ शेयर कर एक पूल बनाकर हम किस तरह से काम कर सकते हैं, मिनिमम इन्वेंट्री में मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हैं, उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा. प्रकाश जी, आई एग्री विद योर पॉइंट. वैलिड पॉइंट था ये भी सर. एनीवन एल्स शेयर करना है कुछ? I would like to add something. Yes. अपना क्या है ज्वेलरी बिजनेस में, आई हैव सीन वन थिंग. आई हैव नॉट बीन, मेरे को ज्यादा दिन नहीं हुआ ये बिजनेस ज्वाइन किए हुए, इनफैक्ट 1 साल भी नहीं हुआ है. तो आई हैव सीन वन थिंग, अपने लाइन में क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट. अपने बोलते हैं कि इन्वेंट्री मैनेज करना, बड़े फर्म्स में क्या होता है, ये काम होता है.
इसके लिए पर्टिकुलर एक टीम होता है जो इन्वेंट्री को मैनेज करता है, बट छोटे होलसेलर्स में या रिटेलर्स में या स्टैंड अलोन स्टोर्स में क्या होता है, एक मैनेजमेंट नहीं चलता है। मेरे को लगता है कि इतना होना चाहिए और इतना होना चाहिए में बहुत डिफरेंस है। मेरे को लगता है कि मेरे पास 500 रिंग होना चाहिए और मैं 250 से ही उतना सेल कर लूंगा, उसमें बहुत डिफरेंस है। आपको आपके पास अगर वो 250 रिंग होना चाहिए और उस 250 में से 50 या 100 रिंग कास्टिंग का होना चाहिए, 50 या 100 रिंग सिलाई वाले होने चाहिए या थोड़े बहुत बैंड होने चाहिए, उसका एक कैलकुलेशन सबको एक करके रखना चाहिए। उससे क्या होता है, आपके पास जितना इन्वेस्टमेंट है उतने में ही आप ज्यादा स्टॉक रख पाओगे। इससे क्या होगा, आपका ये एक्सपेंस अपने आप कम हो जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट का जो एक्सपेंस है ये अपने आप कम हो जाएगा, आपके ज्यादा स्टॉक रहेगा। क्योंकि आज के डेट में हम लोग का हाई वैल्यू बिजनेस है, इसमें सबसे बड़ा एक्सपेंस ही अपना इन्वेस्टमेंट का है। अगर आप इसको मैनेज कर लो तो बाकी एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है उसके सामने। इन्वेंट्री मैनेज करना एक नॉर्मल होलसेलर्स और नॉर्मल रिटेलर्स के लिए बहुत जरूरी चीज है। आप अगर इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर रहे हो, आप एक बहुत बड़ा एक्सपेंस इनकर कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ, एक तो अपना इन्वेंट्री को आउटडेट करना, दूसरा जो सेल आना चाहिए वो सेल नहीं आ रहा है। आप इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर रहे हो, आपके पास 5 ग्राम का चेन कब खत्म हो गया आपको पता नहीं चला, जबकि वो 4 बचे तो आपको पहले पता चल जाना चाहिए। आपका कस्टमर आगे चला गया, दैट्स वन काइंड ऑफ एन एक्सपेंस। वो दूसरे स्टोर पे जाके लेगा, वो नहीं छोड़ेगा अपना डिमांड। दूसरे स्टोर पे गया मतलब एक बार वो बंदा अगर चला गया, वो बंदा दूसरे स्टोर पे चला गया, वो किसी का कस्टमर नहीं है, फिर वो फिर वापस वहीं पे जाएगा पहले, फिर आपके पास आए। तो सबसे बड़ा कॉस्ट, अगर आपको एक्सपेंसर कम करना है, आप अपना इन्वेंट्री सबसे पहले मैनेज करिए। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। प्रतीक जी, गॉट योर पॉइंट। किसी को सर प्रतीक जी की बात पॉइंट पे कुछ डिस्कस करना है आगे? और निवान प्रतीक जी से वही कह रहा हूँ मैं, इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए देखिए आपको आपके होलसेलर्स जो है उसके साथ एक रेपो बनाना पड़ेगा, आपको उसके साथ एक कोलैबोरेशन कीजिए। आप देखिए उनका इन्वेंट्री और आपका इन्वेंट्री दोनों को मिलाना पड़ेगा। मैं कॉस्ट रिडक्शन के लिए यही बात कह रहा हूँ कि अगर आपका रेपो होलसेलर के साथ, आपको शायद इस लॉकडाउन पीरियड में जो सबसे बड़ी बात जो समझने में आ रही है या सीखने में आ रही है कि हम अपने होलसेलर्स को किस तरह या रिटेलर्स को किस तरह के साथ हमारी बॉन्डिंग है उनके साथ, या किस तरह के साथ हम लोग उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। हमारे जितने कंफर्टेबल, जितने कोलैबोरेशन, आप लार्ज नंबर ऑफ वेंडर्स नहीं रखकर अगर आप स्मॉल नंबर ऑफ होलसेलर्स या उस तरह से रखते तो शायद वो उनके साथ होलसेलर भी कंफर्टेबल होगा और रिटेलर भी कंफर्टेबल होगा, तो दोनों का मिलाकर वो एक अच्छा इन्वेंट्री बन सकता है। दैट्स माय व्यू। Thank you, Prakash bhai. Thanks a lot. Kranti ji, over to you. I think we had a very nice session here. बहुत ही अच्छे डिस्कशन हुए हैं। कुछ पॉइंट्स लेने जैसे हैं। मुझे लगता है कोलैबोरेशन या कंसोलिडेशन इज द की, ताकि हम अपने एक्सपेंसेस कम से कम करें, सबसे जुड़े रहे, बी इट अ लॉजिस्टिक ऑपरेटर, बी इट अ टीम ऑफ होलसेलर्स। अब बहुत सारे एसोसिएशन इतने आज स्ट्रांग हुए हैं। आई थिंक अगर हम एक साथ आके हर चीज पे काम करें, प्रेजेंटेशन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स टुगेदर, बी इट ऑन द पोर्टल्स, अगर उसको शिप करना है तो एक साथ आके कैसे करें, सो एवरीवेयर आई थिंक कोलैबोरेशन इज द की। वो अगर हम रखेंगे, आई थिंक ऑनलाइन इज समथिंग व्हिच इज कम अप वेरी स्ट्रांगली। तो हम एक सेशन अगर आप सब लोग अग्री करेंगे, वी विल हैव वन सेशन वेयर वी कैन कम अप विद सम गुड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स। वो बात करेंगे कि किस तरह से कम पैसे में कोलैबोरेटिव एफर्ट से, आई थिंक दैट शुड बी द पॉइंट। आई थिंक जिनके पास बहुत पैसे हैं दे कैन डेफिनेटली गो, खुद होके डिसाइड कर सकते हैं, बट इस प्लेटफॉर्म में हम चाहेंगे जो मीडियोकर होलसेलर है और जिनको कॉस्ट ये बहुत बड़ी समस्या है, एक साथ आके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ के कैसे हम काम कर सके, आई थिंक इसके ऊपर एक हम सेशन जरूर ले सकते हैं। अग्री विराज? अग्री। इनफैक्ट काफी पॉइंट्स ऐसे थे, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, और काफी टेक्निकल पॉइंट्स थी, जैसे 18 कैरेट का पॉइंट हो गया, उस पर भी आई गेस काफी सवाल भी आए थे।
तो हर पॉइंट पे आपको आगे चल के एक अलग से एक मीट इस पे रखना चाहिए, बिकॉज पीपल आर स्टिल विलिंग टू नो मोर। तो वो काफी और डिटेल्स चाहिए। तो वी हैव मेनी मोर टॉपिक्स, आगे आप कर सको इसके ऊपर। Can I just take 2 minutes to just explain something which we are planning to do for the entire jewelry fraternity? Yes. Yes, sir. Go ahead. Would just like to sir quickly take 2 minutes of everybody. So since it was the COVID time और सब लोग को था मन में कि जैसे ट्रैवल की बात निकली, बहुत जनों ने ट्रैवल की बात निकाली कि इट्स अनसेफ करेंटली टू ट्रैवल, लोग आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। सो एक मन में सर बैठे बैठे फ्रेश आइडियाज आते रहते हैं, अभी बैठते हैं घर पे तो एक आइडिया आया था खाली कि BVC would आगे जाके probably once it opens up would become like the salesperson for your company, because सर हमारे लिए लॉकडाउन सबसे पहले खुलेगा, लॉजिस्टिक्स कंपनी को सबसे ज्यादा छूट मिलती है फॉर्चुनेटली। what are we going to be doing is we are still probably on the last stage of finalizing the product. Basically सर ये रहेगा कि we would be, मैं आपको एक नटशेल में 2 मिनट में बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट basically we would be carrying from your office in an condition, we would be taking stock of that. हम लोग stock लेंगे आपसे कि ठीक है आपने इतना हमको दिया है। Probably it's simply like sir BVC आपके लिए sales behave करेगा, that they will take the stock to whoever you want to take it to whichever cities, probably like an exhibition, आप इसको virtual exhibition बोल लीजिए, जहाँ पे आप नहीं जा रहे हैं, BVC going on your behalf for this front, ताकि सबको product दिखाए। How are we going to be doing that? When are we going to be doing that? उसके ऊपर पूरा एक SOP निकालेंगे and through these mediums we will be providing it to everybody. And so literally it's like post lockdown आपका sales कभी भी रुकेगा नहीं, and your jewelry can go probably to the customer from the very next day. So we are just about to finalize this entire product. We should be through with this in the next couple of weeks. So please, I just wanted to inform you all about this product कि खाली एक चीज है सर, इसमें इंश्योरेंस के बहुत पर्सपेक्टिव्स आते हैं बीच में, बहुत सारे इंश्योरेंस के, और लोगों को इंश्योरेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे इसके ऊपर। तो प्लीज फील फ्री टू अस, वंस वी आर रेडी विद द थिंग वी विल डेफिनेटली बी लॉन्चिंग इट एवरीवेयर ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। आपको कहाँ ना कहाँ से पता चल जाएगा। And how would we be taking it forward? We can always all discuss together on different platforms and make this a success, please. Thank you, yeah, we can. Excellent idea. Excellent thinking, and we can take it forward with all the associations also. Thank you so much, sir. Thanks a lot, sir. Thank you. Yeah. Good initiative. Thanks. Thank you. Gandhiji? Yes, I think we have covered everything. Is anybody want to say something? I think 1 hour 30 minutes we covered everything. Thank you so much panelists. I think आप सभी लोगों ने 2 घंटे जो कल दिए उसमें हमने काफी productive और constructive काम किया है, and the points we discussed, some new innovations have come up. So I think I have done with it. Prakash ji और Vishal ji, if you want to say something, because आप दोनों associations ने काफी support किया है इस webinar को promote करने के लिए. Yeah. Well, thanks everyone for joining in. Thanks to all the panelists and all the viewers who have got in touch. Special thanks to KNC team, full team, and especially to Kanti ma'am for organizing this webinar. और ये webinar से एक फायदा ये हुआ है कि एसोसिएशंस के जो मेंबर्स को जो उनके मन में जो शंकाएं थी काफी कि कोविड के बाद किस तरह से हम करेंगे काम, उसके ऊपर भी काफी उनको एक ब्राइट थिंकिंग मिल रही है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि हम घर पे बैठ के भी कुछ न कुछ लर्न कर रहे हैं। एवरी डे वी आर लर्निंग समथिंग। दैट्स ग्रेट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। और आप सभी को पता है हमने पाठशाला ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है, काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो रिक्वेस्ट है अगर आप सभी को कोई टॉपिक्स अगर बताना चाहे तो प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए, तो हम उस टॉपिक्स को हमारी पाठशाला में लेके आएंगे। Yeah, I would like to say one thing. कांति मैम, आपका पाठशाला का जो सेशन है वो बहुत बढ़िया हुआ है, और 3 जो सेशन हुआ है, अगर वो तीनों का रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो अगर आप कहीं उसको कुछ कर सकते हो रन वगैरह, तो बहुत अच्छा सेशन था। वो काफी काम का सेशन होगा सबके लिए। पाठशाला का सर प्रकाश जी पेज भी है, मैं पेज पे भी डालती हूँ, सारी रिकॉर्डिंग आपको पर्सनल इसमें भी डालती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। बट प्लीज आप सभी लोग फीडबैक दीजिए। मुझे यही कहना है कि हम और एक सेशन करेंगे अगले हफ्ते, क्योंकि काफी लोगों ने कहा है
कि व्हाट इज द न्यू नॉर्मल, आगे जाके बिजनेस किस तरह से नॉर्मल किया जाए, इसके ऊपर एक सेशन करेंगे, बट ओनली आफ्टर डिस्कशन. वी डोंट वांट टू कम अप विद समथिंग वेरी रिपीटेटिव. एक टीम बनेगी उसके ऊपर एंड वी विल कम अप विद दैट सेमिनार आल्सो. तो प्लीज स्टे ट्यून्ड. Sure, man. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much. I think it's been a nice session that we've had and good input from all the panelists. Yes. It was really nice. Vishal ji, Thank you, Kranti ji. Thank you. Thank you, Viraj. You've been a wonderful moderator. Thank you, Harsh. Sorry, मैंने पता नहीं बीच में आपको कह दिया. विराज जी, रियल में अच्छे क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चंस. Yes. बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने उनको फ्रेज किए. Really good. हर्ष जी बहुत बढ़िया. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Thank you so much. Yes, sir. मोहित जी ने भी काफी अच्छे पॉइंट्स रखे. Kranti, just one point a lot of manufacturers keep speaking to me on once it opens up was one very important point, Yash. How will we maintain the hygiene of the shipments which are coming in also to us? That was a question. Yeah, like because the most important point is, Yash, before everything else, because aap log are always going to be the mediator point in between to collect those shipments. So I think it's very important to have a small session on the hygiene part of it, ki what the customers need to maintain. So I think Harsh, that we should do together with you because you are going to be handling it more. Yes, please. Yes, absolutely. So we should. Yes. Anytime. Whenever it's convenient for all, I'm okay, please. See, we are prepared. So you let us know so people will be aware of it. You can get a SOP done for this. You can release we already have, sir, an SOP in place. We have an SOP in place. So let us know, sir, whenever you want to have that session, we can offline first share it with a few people, and then we can take it up on a webinar, sir. Yeah, sure. Great. Yeah. Thank you all the panelists. Thank you so much. Thank you. Thanks, sir. Thank you. Thank you, everyone. अब कल का इंतजार करेंगे. Sure. Yeah. Thank you.